Okay, everyone, let's start with our session today. Today, we first of all, we all welcome you to join this session, and we are grateful that you all joined. And we'll be starting now, as it's been already 15 minutes late. So today we have with us our AIRs 2, that is two All India rankers we have with us today. First one is All India ranker 50, that is Anuj Mundra, and second is Kritika Bajoria. She is AIR 50. Okay, so Anuj will be discussing on practical subjects, how to study them, what should be the appropriate strategies, how to present our papers, uh, stress management during exams, how did they schedule in 1.5 days the entire syllabus. So, start with the session. Hi Anuj, hi Kritika. I hope I'm audible. Hi, Harshit. Yes. Hi. Hi, you're audible. Yes. Yeah. Hi, hi everyone. Hi. Thank you so much, both of you, for joining for our today's session. Yeah, thanks a lot. Yeah. Thanks a lot. Yeah. So just for clarity, so mine was not 15, it was 20. Sorry, I'm so sorry. AIR 20 and Kritika was AIR 50, right? Yeah, yeah, Yes. Yes. yeah, Okay. So let's start with the session, Anuj. yeah. So, Oh, Harjas, how many people are there? And they are all from May attempt, right? yeah, probably may attempt, and there are around 46 participants. Okay. Others will be joining soon. Actually, in the group, there were around 80 to 83. Yeah, I guess they will be joining in a while, but by then we can start as we are running already late. yeah, okay, okay. So, is there any defined structure? So, like, No, no, it's when you, new. Like we have already told you that what yeah, topics all of us would like to hear from you, but yeah, it's upon you. However, you want to go through it, it's your sure, choice. sure, sure, Harjas. Thanks. So, hi everyone. So, we'll just start with a little introduction. So my name is Anuj Mundra, and I got All India Rank 20 in the November 22 in C Intermediate exams. Currently, I'm working as an industrial training with Godrej Consumer Products Limited in Mumbai. So that's my background. I also got uh, since I will be talking about practical subjects. I got 100 out of 100 in the paper number 3, which was costing. And during our attempt, there were 8 papers. Hello. Uh, Yeah, Anuj, you are audible. yeah, yeah, I'm audible, right? Okay. Sure. So we were told to discuss some time management strategies and how to plan your 1.5 days. So me and Kritika will go like hand on hand. Hi Kritika, are you there? Yes. Hi, Anuj. I am Yeah, here. yeah. I think we can make it a little interactive with them. Yeah. We Yeah. both Sure. can discuss what we went through. How did we overcome these things? I think that would be much great. Can we, Harjas, can we make it interactive, like in the first half also? Like in the Q&A, of course, it would be interactive only. Yeah, yeah, of course you can do it, Anuj, however you want. I would also request everyone to please turn on your camera so that it would be even interactive for speakers as well. Yeah. See, there was a time when we used to attend these kind of sessions in our coaching also and online also, which were organized. So we are the same people. Yeah. Yeah, actually, Anuj, I was about to address it that Yeah. first of all, I would like to express my gratitude towards Kalyan Dombivali branch of Vikasa because when we were students, we were in your place and we were attending these Yeah. sessions to get Yeah. motivation. So, matlab, to be here and guide you guys is like a, deja vu kind of thing. Yeah. कि हम भी यहीं पे थे एक बार और मतलब आप जो पॉइंट पे हो अगर आप नर्वस हो आप स्ट्रेसफुल हो अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो वी हैव एक्सपीरियंस थ्रू दैट ऑल्सो मतलब सब कुछ हमें भी एक्सपीरियंस हुआ है तो मतलब इट फील्स लाइक अ डेजा वू
Yeah, so we have just switched places, nothing else. हो Yeah, सकता है true. for the November 25 attempt आप में से किसी को कल्याण डोंबिवली ब्रांच से मौका मिले True. सेम सेशन प्रेजेंट True. करने का, right? Yeah, So yeah. yeah, so guys, can you just send a hi or uh, in the chat box, like what attempt are you gonna face? So I think we would be discussing more from the May attempt perspective only. So let's there. So there are only 1 month is left from that perspective. Yeah. So yeah, people are active. Nice, 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 nice. So yeah, so we haven't prepared any PPT or something, but yeah, I have jotted down certain points which I would like to which I'd like to take reference of. So the first thing which I would say for practicals, the first thing for the entire exams are believing that it is not hard, it is lengthy. That the exams are not that much of hard. They are not that much difficult, but the papers are lengthy. The modules are lengthy. I think Kritika would also agree with me on this. मतलब वही हो जाता है एक्चुअली बिफोर एंटरिंग सीए, लाइक सीए एज अ कोर्स, हमको यही हमारे दिमाग में फिट कर दिया जाता है दैट सीए इज अ हार्ड कोर्स, Hard दैट course, yes. अगर आप चले गए तो आप कर ही नहीं पाओगे, इतना डिफिकल्ट है, इतना हार्ड है, तो वो दिमाग में एक्चुअली फिट हो जाता है कि नहीं बहुत हार्ड है. बट व्हेन वी थिंक फ्रॉम इट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो वो हार्ड नहीं है, उसको बस आपको कंसाइज करना होता है. इट इज अ लेंदी कोर्स कि वो 1.5 डेज में आप उतने सारे सिलेबस को आप उसको कैसे कंसाइज करके रिवाइज करके उसको पेपर 3 आवर्स में कैसे लिख सके. इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजीज. मतलब आपको अगर कॉन्सेप्ट आता भी हो, आपने अच्छे से पढ़ा भी हो, लेकिन आप वो 1.5 डेज में उसको रिवाइज नहीं कर पाओ, Yes. तो दैट विल टेक अ टोल ऑन दैट डे. विच जो भी रिवाइज करना लेफ्ट है 1.5 डेज में, इट इज इक्विवेलेंट टू के नहीं पढ़ा है वो कभी. दिस वी नो. या. Yeah. So let's start subject wise only. Let's Yeah. we'll start with because Q&A में most of the things would cover. So एंड if लाइक you अनुज, say- ऑल्सो फॉर क्लैरिफाइंग, हमारे टाइम में तो 8 सब्जेक्ट भी होते थे, एंड yeah, we आपके have टाइम पे कंसाइज करके उसको 6 सब्जेक्ट कर दिए ये हैं, एंड लाइक subject है. ईआईएस जैसा सब्जेक्ट आपको हटा दिया गया है. लाइक मी एंड अनुज नो कि ईआईएस से क्या, हमारी भाई बहुत ज्यादा It डर is लगता an था उससे. advantage for sure, which is a good move by I say first यस. of all. Yeah. So the first thing I would say that जब भी we are solving questions for the first time, अभी assuming कि आप लोग अभी अपना revision start करोगे, first revision or maybe second. So do one thing, put a cut mark on questions which you are able to solve in the first go. आपने notes पढ़े, first thing, आपने notes पढ़े and then आप questions पे गए. तो जो क्वेश्चंस आपसे फर्स्ट ही अटेम्प्ट में हो रहा है, इसका मतलब है कि वो आपसे हो जाएगा. सो उस पर आप एक क्रॉस लगा दीजिए छोटा सा साइड में, जिससे आपको पता होगा कि फ्रॉम द सेकंड डिवीजन ऑनवर्ड्स ये क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं है. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट, जिससे बिकॉज द थिंग इज दैट क्वेश्चंस इतने सारे क्वेश्चंस है, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज ईच एंड एवरी वन इन द लास्ट 1.5 डेज. एंड एज वी सेड कि जो रिवाइज नहीं होगा वो एग्जाम में आप लिख भी नहीं पाएंगे, भले आपने पहले कितना भी पढ़ा. सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमको पूरे के पूरे कंटेंट को जितना हो सके उतना शॉर्ट करना है. अज्यूमिंग कि अभी सबके पास नोट्स होंगे, हाई क्वालिटी नोट्स अपने फैकल्टीज के, और इफ यू हैव सेल्फ प्रिपेयर्ड योर नोट देन इट इज वेरी वेल एंड गुड. व्हाट यू हैव टू डू फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इज लाइक कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स में ऐसा होता है कि फर्स्टली देयर इज अ कॉन्सेप्ट, then there are questions based on the concept, and there are multiple questions based on the same concept. So what you have to do is कि जिस भी क्वेश्चन में एक डिफरेंट एडजस्टमेंट आ रहा है, you will see in many questions in costing the question is same, only a single different adjustment is there. In India also, you have to highlight that single adjustment, and when you will start revising, you will see कि yes, this is a important adjustment. So you will know कि this has a chance of being clubbed to any other adjustment also, or any other big question also.
first thing is that. And then what I used to do is कि जब भी when we are solving questions, तो बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ चीजें उसमें हमको खुद की लैंग्वेज में लिख समझ आती थी कि सर ने बोल दिया या यूट्यूब पे हमने देख लिया कि ये ऐसे ऐसे होगा, तो ओनली इफ तुमने वो चीज लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ पे भी तुमने सॉल्व किया वो चीज नहीं समझेगी, तो व्हाट आई यूज टू डू वाज मैं उसको हिंदी में ही या इंग्लिश विच वी से उसी में क्वेश्चंस पे ही लिख देते थे कि ये एडजस्टमेंट ऐसा है, ये नंबर यहाँ से डिराइव हुआ है, ताकि जब भी आप खुद से देखोगे तो आपको वो चीज़ याद आ जाए ऑटोमेटिकली। जब आप खुद की लैंग्वेज में देखोगे तो आपको वो चीज़ याद आ जाएगी। एंड हाउ टू स्टडी के अंदर इफ आई से अ पॉइंट इज व्हाट वी यूज टू डू वाज वी यूज टू रिवॉर्ड आवरसेल्फ आई यूज टू रिवॉर्ड आवरसेल्फ विथ टारगेटेड स्टडी। सो दिस इज अ मस्ट, यू हैव टू प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट। अभी मोस्ट ऑफ द पीपल बोलेंगे कि हाँ हम करते हैं टू डू लिस्ट प्रिपेयर या हम करते हैं टारगेट लिस्ट प्रिपेयर, बट वो फॉलो नहीं हो पाती। मेरी ड्यूरिंग द सीए इंटरमीडिएट करियर में, नॉट करियर, ड्यूरिंग द सीए इंटरमीडिएट टेन्योर में, लास्ट 3 मंथ्स जो भी सीरियस पढ़ाई होती है, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब मेरी पूरी टारगेटेड स्टडी कंप्लीट होगी, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अगले दिन बनानी छोड़ दी। द थिंग इज आपको रोज वो प्रिपेयर करना ही है। सो व्हाट इज एडवाइजेबल इज कि आप एक पूरा वीक का टारगेट बनाओ, देन आप उसको डिवाइड करो डे बेसिस पे, एंड व्हाट इज लेफ्ट, या अर्जेस, एंड वॉट एवर इज लेफ्ट फॉर मंडे यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड इट टू ट्यूसडे, जिससे आप भी वो चीज़ नहीं करोगे। आपको भी पता है कि ये मंडे को खत्म होना चाहिए, तो मंडे को खत्म हो ही जाना चाहिए, वरना ट्यूसडे को एक्स्ट्रा लोड रहेगा। तो काइंड ऑफ सीए कोर्स थोड़ा सा मेंटल गेम ज़्यादा है। आई थिंक हार्डवर्क तो है ही, स्मार्ट वर्क भी है ही, बट मेंटेलिटी का, माइंडसेट का गेम ज़्यादा है कि आपका माइंडसेट प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अनुज, मतलब आई वुड लाइक टू द पॉइंट ऑफ रिवॉर्ड, मतलब जैसे तूने बोला कि रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड सिस्टम लाइक आई यूज टू ऑल्सो कीप। क्या होता था, अगर आपने जैसे एक दिन आपने गोल बनाया है कि मेरे को कॉस्टिंग में इतने चैप्टर्स करने हैं आज, और ऑडिट के 2 घंटे में मेरे को ये ऐसे रिवाइज करना है, तो मतलब आई यूज टू कीप एनी वन थिंग टू कीप मी मोटिवेटेड। मतलब ये कंप्लीट हाँ, करके मैं ये आई तो ये आई मतलब मैं सिटकॉम्स बहुत ज्यादा देखती थी, तो मेरा रिवॉर्ड क्या होता था कि मैं ये कर लूं तो आई विल वॉच 1 एपिसोड ऑफ 1 सिटकॉम। तो मतलब अगर वो कंप्लीट हो जाता था ना, तो रिवॉर्ड सिस्टम, अब ऐसा मत करना कि नहीं कंप्लीट हुआ तो भी आप वो रिवॉर्ड देख रहे हो, दैट शुड बी, मतलब उतना सेल्फ 100%। डिसिप्लिन होना चाहिए आप में। तो हाँ, उससे क्या होता है, आपका माइंड भी मोटिवेटेड रहता है कि ये पढ़ने के बाद आई विल गेट अ रिवॉर्ड, दैट विल बी माई कंपनसेशन काइंड ऑफ थिंग। या सो या वही है रिवॉर्ड सिस्टम। सो जैसे सेम, मेरा भी सेम। तो आई वॉच्ड फ्रेंड्स की कितने ही सीजन्स लास्ट के 1 महीने में ड्यूरिंग सी इंटरमीडिएट के, सिर्फ ये रिवॉर्ड सिस्टम के हिसाब से कि लेट से ड्यूरिंग, ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरा दिन खत्म होगा तभी जाके वो रिवॉर्ड आएगा, बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाएगा। सो रिवॉर्ड्स कैन बी वेरी स्मॉल। इट्स लाइक कि लंच से पहले मुझे डेली टारगेट, एंड या डेली टारगेट आपको सेट भी अ डे बिफोर करना है, यस्टरडे नाइट को डेली टारगेट सेट करना है। फिर जैसे कि लंच के पहले मेरा इतना इतना हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो लंच डिले होगा, ये हो सकता है। एंड आई यूज टू स्टडी अ लॉट ड्यूरिंग द नाइट, सो आई एम अ नाइट ऑल। सो व्हाट आई यूज टू डू बस कि इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे तो 10 मिनट के सॉन्ग्स टाइम है, 10 मिनट तक आई लिसन टू सॉन्ग्स। तो जैसे कुछ भी हो सकता है आपका हो सकता है कि आप आइसक्रीम खाओगे, हो सकता है आप किसी से कोई भी फ्रेंड है या उससे अगर उससे आप 5-10 मिनट बात करोगे, तो जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करती है वो चीज़ को खत्म करने के लिए आपको वो रिवॉर्ड सेट करना पड़ेगा। अदरवाइज यू कांट गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो फॉर अ मंथ। यू हैव टू कीप स्मॉल रिवॉर्ड्स एंड ओनली गेट देम इफ यू कंप्लीट द टारगेट। ये एक बहुत ही इफेक्टिव स्टडी है, जैसा कृतिका ने भी बोला। एंड ये आप कोई भी वीडियो देखोगे, किसी से भी बात करोगे, तो उन्होंने ये चीज़ फॉलो करी है, क्योंकि हमारा कोर्स ही ऐसा है कि वी कांट डू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग ऑफ टाइम विदाउट बीइंग डीमोटिवेटेड, क्योंकि इंस्टेंट एंड ग्रेटिफिकेशन है ही नहीं। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड वन पॉइंट, कि जब हम लोग रिवीजन करते हैं ना, तो मोस्टली लाइक बच्चों की क्या गलती होती है, दे फोकस ऑन दी आवर्स टाइम, कि हम दिन में कितने आवर्स या पुट कर रहे हैं, कि हमको 14 आवर्स पुट करने हैं, 12 आवर्स पुट करने हैं, तो हम वो कर ही रहे हैं, भले दिमाग में कुछ घुस ही ना रहा हो, भले हम एग्जॉस्ट हो गए हो कि
पढ़े जा रहे हैं बट कुछ माइंड में नहीं जा रहा, तो दैट विल नॉट हेल्प यू. What matters is the effective hours of time that you are putting in your studies. तो भले भले आप दिन के 12 hours नहीं मीट कर रहे हो, भले आप 6 to 8 hours लेकिन इफेक्टिव पढ़ रहे हो, तो that is equivalent to the 12 hours that you are putting without being effective. Yeah, so focus on the quality, not the quantity. Quantity. Not the quantity of hours. Focus on the quality of the. So anyone do you want to say something or do you want to ask something based on what we discussed? Chat box में भी चलेगा. Cool. ठीक है. So another point which I would like to add is practical subjects के लिए. Hi Manoj. Wasim, how to write answers. Right, or yeah. The And audit part would be covered by me after Anuj has addressed Yeah, the practical part. So yeah, that would be covered by me afterwards. Or uh, if you want, can we do it as a flow में? Yeah, actually, sure. I would like everyone Yeah, to yeah. know Sure. that I would like everyone to know that Anuj has got 100 on 100 in costing. I forgot to mention that in his introduction. So he is a very good person to answer your doubts regarding costing or like practical subjects, any accounts, practical subjects like costing, FM. So you can ask Yeah. doubts regarding practical subjects, if any, from Anuj. Even Kritika would be able to answer it, but yeah, Yeah. it's Anuj's expertise in costing. Yeah, so Manoj has asked question के कैसे secure किया if it's a pretty difficult subject to complete the entire syllabus in one day. So पहले तो honestly, to be honest, सोचा नहीं था एग्जाम से पहले कि ऐसा कोई सोचता तो है नहीं first thing. And the paper was also more or less from the study mat only, from in our attempt. So costing में strategy if I say कि strategy क्या थी costing के लिए, फर्स्ट थिंग ये कि हमने स्टार्टिंग से फ्रॉम द डे वन ओनली वी स्टार्टेड कटिंग क्वेश्चंस, वी स्टार्टेड minimizing the content which we have to revise each and every time. So we started cutting question from the study mat and then during our क्योंकि फर्स्ट थिंग इज नोट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए जिसमें आपका हर एक चीज लिखा होना चाहिए एंड देन के क्वेश्चन के साथ में आपने उसके सोल्यूशन को जिस जो भी स्पेशल एडजस्टमेंट है write it in a language which would be understandable to you. Then whenever you are revising it for the first time, you already have a content which is short, you already know that this is a difficult question and yeah, so there are certain questions, yeah, we'll go to that. So you have to know कि ये difficult adjustment है and याद कर लिया मैंने वो एडजस्टमेंट मैंने याद ही कर लिया है कि जब ये चीज आएगी तो ये होना ही चाहिए, फॉर्मूलाज के बाहर भी ये चीजें याद करनी पड़ती है कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर एंड गो थ्रू स्टडी मैट, आईसीआई का स्टडी मैट वेरी 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 क्लियरली. कोई भी फैकल्टी कुछ भी बोले कि हमारे क्वेश्चन है, बस ये देखो कि उसमें स्टडी मैट कवर्ड है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा पेपर स्टडी मैट से आता है. एंड आई विल ऑल्सो लाइक टू टेल कि अभी पेपर कितने मार्क्स का होता है हर्जस. सो लाइक ड्यूरिंग आवर अटेम्प्ट इट यूज्ड टू बी ऑफ 120 मार्क्स टोटल, आउट ऑफ उसमें से हमको 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना पड़ता. अभी आई गेस 124 होता है. No, I guess 120. Even I'm from your attempt only. अच्छा, So, okay. but yeah, I 114. guess it's 114. It's less. Okay, it's 114. Now it's been MCQ Yeah. also, na? 30 या marks. या या सो एक चीज जो हमारे सर ने भी हमको बोली थी स्टार्टिंग से कि 114 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आपका पेपर सिर्फ 80 मार्क्स का ही है. आप ये अज्यूम करो, आप ये भूल ही जाओ कि जो रिमेनिंग है, जैसे 40 मार्क्स हमारे लिए 40 मार्क्स था, वो 40 मार्क्स आपके लिए है ही नहीं. आपकी जो चीज़ें आपको आती है वो 80 मार्क्स की है, आपको वो 80 मार्क्स का अच्छे से सॉल्व करना है. इफ आपको उससे ज्यादा आता है देन इट्स अ बोनस. सो कॉस्टिंग में, अकाउंट्स में, सब में यही स्ट्रेटजी थी. बिकॉज होता क्या है कि जैसे ही हम कोई हार्ड क्वेश्चन देखते हैं ना, वी गेट टेरिफाइड कि अरे सारा पेपर ही ऐसा है.
हमारा ऐसा था कि हार्ड क्वेश्चन देखा बहुत ही अच्छा है, हार्ड क्वेश्चन ये है, ये नहीं आता, मतलब बाकी के सारे क्वेश्चन हमारे वाले, तो हमको पता है कि ये ओमिट करना है और बचा हुआ 80 मार्क्स हमको आता है। एंड ऐसा होगा ही होगा, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आईसीआई यही करता है कि कुछ क्वेश्चन को इतने हार्ड करता है विच इज नॉट फॉर द विच इज नॉट फॉर ईच एंड एवरीवन, एंड जो लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते वो उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर जाते हैं जो आपके लिए बना ही नहीं है। आपके लिए बचा हुआ पेपर बना है, आप वो क्वेश्चन को छोड़ो, आप बचे हुए पेपर पे ज्यादा फोकस करो। तो और ये माइंडसेट अगर एग्जाम देने से पहले ही होगा तो आप घबराओगे भी नहीं कि 80 मार्क का ही है, तो उसमें से अगर आपने 40 मार्क्स का या वट एवर 34 मार्क्स का आपने इग्नोर भी कर दिया तो भी यू नो 80 मार्क्स है, एंड द थिंग विच इज कि आपको 80 मार्क्स में से मैक्सिमम कैसे डिराइव करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो द फॉर अकाउंट्स, फॉर टैक्स एंड फॉर कॉस्टिंग, वन थिंग विच आई हैव सीन फ्रेंड्स के साथ भी एंड जब कोचिंग में थे तब भी, कि लैक ऑफ फोकस ऑन वर्किंग नोट्स। ये भूल ही जाते हैं हम कि फाइनल फाइनल आंसर का मार्क्स नहीं है, पूरे सॉल्व का सॉल्यूशन करने का मार्क्स है। अगर आप कभी भी स्टेप वाइज मार्किंग देखोगे आईसीए का, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग नोट्स पे एक एक मार्क्स दे रखे हैं। जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता था स्टार्टिंग में, उसमें 10 मार्क्स होते थे मेन मेन क्वेश्चन के आंसर के, एंड 10 मार्क्स होते थे वर्किंग नोट्स का। सो जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, स्टडी मैट में हर चीज का वर्किंग नोट है, हर चीज का। एंड कभी कभी इट्स वेरी सिली के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का भी उन्होंने वर्किंग नोट बना रखा है। द थिंग इज आपको भी वो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि दैट वर्किंग नोट कैरीज 1 मार्क। अगर 100 और 100 कैसे सिक्योर किया, उसमें यही था कि ईच एंड एवरीथिंग, थिंक के जो एग्जामिनर है उसको कुछ भी नहीं आता है, आपको सब कुछ उसको परोस के देना है। he don't have he should not be using his mind. If he starts to use his mind, then he will start cutting your marks also. उसको ईच एंड एवरीथिंग आपको एकदम अच्छे से प्रेजेंट करके परोस के देनी है, कि उसको अगर नहीं भी आता, वो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो भी उसको समझ आता है। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। देयर आर Anuj, टू। ये किसी ने क्वेश्चन someone has asked, I guess Divesh, that which chapters should be covered more priority wise. How did you decide? Like, did you have any ABC analysis of which chapters to be given special focus to while deciding how to plan your studies for costing specifically? या फॉर कॉस्टिंग सी, इतना टाइम हो गया तो आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली। सो या जो भी मेजर चैप्टर्स आपके टीचर्स ने बोले वो सब है ही। एंड द थिंग इज जो थियरी है वो आप थोड़ा, थियरी को थोड़ा सा आप लेस इंपॉर्टेंस दो तो चलेगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इट डज नॉट कैरी दैट मच वैल्यू, बिकॉज कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वेटेज बहुत कम है। सो आप थियरी वहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। एंड ऐसे थियरी का ध्यान रखता है अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से, लॉ एंड ऑडिट के थ्रू। बट सो अनुज, अभी जैसे एमसीक्यू का पेपर या पैटर्न अभी चेंज हो गया एमसीक्यू आ है, गया तो आई गेस है। थियरी इज आल्सो important to focus for today's exam pattern, I guess so. या थियरी पढ़ते तो सभी है। आई एम सेइंग कि द वे इन विच वी लर्न थियरी इन ऑडिट एंड लॉ, तो वी हैव Correct, टू correct. रिमेंबर द हेडलाइंस जो भी बात करेंगे Yeah. थियरी का या थियरी का। Hmm. तो आपको बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर रहती है थियरी की, तो भी आई गेस हो जाता है That's थियरी। enough. Okay, दैट्स great. इनफ, या Okay. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थियरी। एंड रिविजन लेक्चर भी देख लिया अगर आपने उससे पहले, एक दिन पहले थियरी का, तो दैट वुड ऑल्सो गो थ्रू। Okay, एंड Namrata या has asked Anuj from you. या Yeah, okay, sorry. Continue, please. या चैप्टर वाइज वेटेज में आई वुड लाइक टू से वन थिंग के what I did was कि of course giving each chapter equal weightage, because कभी भी कुछ भी बॉम्ब फोड़ सकता है इसे। सो ये मत सोचना कि इस चैप्टर से आज तक नहीं आया तो वो आपके अटेम्प्ट में ही आएगा 20 मार्क का, अगर आपने सोचा है तो। what you can do is you can remove topics from a chapter, कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा ही हार्ड है, कि लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो द वैल्यू इज नॉट ग्रेटर बट द एफर्ट इज टू मच, कि अगर क्वेश्चन आ भी जाता है इस टॉपिक का तो चलेगा, अगर आता है तो 4 मार्क्स जाएंगे तो चलेंगे, बिकॉज उसमें हमको 20 घंटे नहीं डालने पड़ेंगे। सो यू कैन डू दैट, कि आप जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आप में, उसमें आपको एक टॉपिक कुछ ज्यादा ही हार्ड लग रहा है, आपको रिवीजन के टाइम पे नहीं समझ आ रहा है, आपको अभी तक भी क्लियरिटी नहीं है उस चीज के बारे में, तो आप चैप्टर में से वो टॉपिक छोड़ दो। पूरा चैप्टर कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं। अगर आप कोई चैप्टर छोड़ भी रहे हो, इफ यू आर प्लानिंग टू लीव एनी चैप्टर, उस चैप्टर में सिर्फ जो इजी टॉपिक है वो आप कर लो। इसमें आई वुड लाइक टू शेयर वन एक्सपीरियंस ऑफ माइंड।
कि हमारे FM एंड EFF विच वाज इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वो साथ में होता था, पेपर नंबर 8। एंड FM में मैंने एक बहुत ही बड़ा चैप्टर छोड़ दिया था विच वाज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हर्जस, यू वुड रिमेंबर, Yeah, of राइट? course, of course. हाँ। तो थोड़ा सा डर भी था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट छोड़ दिया बहुत इतना सारा। हिम्मत चाहिए उसके लिए। या हाँ। तो मैं व्हाट आई यू विल नॉट बिलीव कि एग्जाम से पहले वाले दिन मैंने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सिर्फ एक कुछ कैश लेजर करके आई गेस टॉपिक होता है उसमें, हाँ अभी भी हाँ होता हाँ, होगा, कैश कैश मैनेजमेंट। लेजर करके कैश मैनेजमेंट एंड 2-3 उसके एकदम इजी टॉपिक्स, वो अपने को फ्रेंड से बात करके पता चलता है कि ये एकदम इजी टॉपिक्स है। सो आई थॉट कि क्या है, हाफ एन आवर जाएगा, कुछ नहीं। सो मैंने लिटरली ड्यूरिंग जो एग्जाम का दिन था उस दिन सुबह लंच के टाइम पे वो देखा है अलॉन्ग विथ फूड, एंड FM के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन वही टॉपिक का था। सो ये तो ऑफ कोर्स ही बात है, प्योर लक है, दिस इज प्योर लक। एंड वो 5 मार्क का क्वेश्चन था, वो 5 में से मेरे को 4 आ भी गए। जो 1 मार्क वो स्टेप वाइज क्वेश्चन था उसमें से एक नहीं आता था। तो दिस वॉज प्योर लक। बट यस, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू सी के पूरा चैप्टर मत छोड़ो। चैप्टर में से जो जो आपको टॉपिक्स लग रहा है कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, प्लस कुछ ज्यादा ही आपके लिए आपका एफर्ट खा रहा है, तो वो आप छोड़ सकते हो इफ आपका अभी तक नहीं हुआ है। अदरवाइज डोंट लीव एनी चैप्टर। या दैट्स अ ग्रेट एडवाइस अनुज। सब लोग यही गलती करते हैं कि अपना अनफेवरेट चैप्टर का चैप्टर ही उड़ा या देते हैं पूरा एग्जाम से पहले। Yeah, that's a good point to note. Anuj, we have another question from Namrata. Anuj, as you said, you are a night person in terms of hours allocation. How was your schedule in exam period as well as in preparation time? सो ये तो बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है। सो मेरा तो शेड्यूल बहुत ही अलग था नम्रता, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। नाइट पर्सन मैन आई से इट वाज एट अ टाइम, एक ऐसा टाइम आ गया था जब पूरा ही अपोजिट हो गया, जब लोग सो रहे हैं तब मैं जाग रहा हूँ, जब मैं जाग रहा हूँ तब लोग सो रहे हैं, ऐसा हो गया था। सो आई यूज टू स्टडी टिल 6-7 इन द मॉर्निंग, एंड देन जो भी है स्लीप शेड्यूल दोपहर के टाइम पे, बिकॉज I can't study. I think I can't study during the afternoon hours. That's why I scheduled it that way. And वही है, रात के 9 से लेके सुबह के 7 तक आपको कोई डिस्टर्ब कर भी नहीं सकता। आप डिस्टर्ब हो भी नहीं सकते। आप चाहोगे ना डिस्टर्ब होना तो भी आप नहीं हो पाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी वन टू टेक्स्ट, यू डोंट हैव एनी वन टू कॉल, योर इंस्टाग्राम इज नॉट देयर, योर स्नैपचैट, वट एवर एल्स। ऑफकोर्स दिस इज द फर्स्ट थिंग आई एम अज्यूमिंग कि ये सब चीज़ें किसी के भी पास नहीं होगी अभी। सोशल मीडिया कोई भी यूज़ नहीं कर रहा होगा। एंड ये ट्रेडिंग एप्स भी, ग्रो, जेरोधा, सबको लग रहा है 1 महीने में पैसा कमा लेंगे, या वो सब अभी डिलीट कर दो। एग्जाम के बाद बहुत मिल जाएगा आपको, अगर आप पास हो जाते तो उसका। तो आपके फ़ोन में कोई भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड या आर्स एलोकेशन, जैसा कि बात हुई कि टारगेटेड स्टडी इट वाज नॉट के बेस्ड ऑन आर्स। एंड एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब टारगेट पूरा हो गया, बिकॉज टारगेट आई थिंक कि सेट ही उस हिसाब से कर रखा था कि थोड़ा स्ट्रेच डी होगा। तो आर्स के हिसाब से नो बडी काउंट्स कि मैंने 2 से 3 बजे तक कितना पढ़ा है। वो उससे काम नहीं चलेगा। आपने कैसा पढ़ा है, बट क्या आपने क्वालिटी स्टडी करी है? क्या अभी मैं आपको वही सेम क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको आएगा? सो फोकस ऑन द टारगेट एंड आर्स। फर्स्ट थिंग इज कि अभी सारे घंटे सिर्फ पढ़ाई की है। खाना, सोना एंड जो भी एक्सरसाइज है वो सब हटा दो, उसके अलावा सारे आवर्स आपके पढ़ाई के होने चाहिए, सारा एलोकेटेड पढ़ाई पे होना चाहिए। वी हैव Okay. मल्टीपल क्वेश्चंस है। Coming to Kritika now. Kritika, please can you let us know that how did you manage to study theory, especially audit and there was EIS at your time, but today it's Yes. not there. So yeah, especially Hmm. audit and law. या एक्चुअली थियरी की जब बात करते हैं ना, तो सबके मन में एक डर बैठा हुआ है कि मतलब व्हेन यू एंटर सीए एंटर ना, तो आप सीनियर से बात करते हो, दे से भाई ऑडिट ऑडिट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऑडिट कर लेना अच्छे से वरना ऑडिट ही लेकर डूबेगा तुमको। तो आई थिंक दैट द मोस्ट थिंग दैट पीपल हैव इन देयर माइंड इज द फियर rather than the लाइक कॉन्सेप्ट, कि उनको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको फियर है कि ऑडिट ले डूबेगा। बट एक्चुअली क्या होता है,
ICI इज वेरी सिंपल. आप ICI की मॉड्यूल रेफर करो, उसमें जो पॉइंट्स पूछेगा है ना, डोंट इवन ट्राई टू रिमेम्बर देम. मतलब आप रट्टा मारने की कोशिश मत करो. रट्टा, यू विल नेवर बी एबल टू लर्न एवरीथिंग. बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, अब समझ लीजिए आप वर्ड्स रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. अब एक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, ऐसे 200, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, तो इसको रट्टा नहीं लगाना है कि आप पूरा पैराग्राफ रट्टा लगा रहे हो. आप बस वर्ड डिफाइन कर रहे हो कि रीजनेबल एश्योरेंस उसको देना है, किस किस को देना है, क्यों देना है. तो ट्राई टू जस्ट रिमेम्बर दोज पर्टिकुलर वर्ड्स दैट ICI वांट्स फ्रॉम यू. एंड मतलब ऐसा क्या होता है लोगों को कि मुझे लर्न नहीं होता है, मुझे रिटेन नहीं होता है. तो एक्चुअली क्या होता है, एवरीबडी हैज अ सब्जेक्ट फोर्टे, राइट? कि अनुज का समझ लो कॉस्टिंग में फोर्टे था, या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फोर्टे था. और किसी का क्या होगा कि मेरा थियरी सब्जेक्ट में फोर्टे है, कि मुझे थियरी जल्दी लर्न हो जाती है बट प्रैक्टिकल में मेरा नहीं इतना दिमाग लगता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई दैट फोर्टे ऑफ योर्स, एंड ऑल्सो दैट सब्जेक्ट that requires extra effort from you. And I think most of you must have the extra effort wala subject must be audit for you, I think, right? आप सबका extra effort वाला subject कौन सा है? Mostly audit Mostly Audit audit, right? and But tax. someone has Practical में even सबका asked tax for होगा. SM also. Yeah, Strategy. SM actually SM ये तो का फेवरेट है मेरा यार. भी वैसा ही था. I passed on the grounds of EIS. मैंने EIS अच्छे से पढ़ा था. That's why I passed with SM. SM was very bad for me. That I will not talk about. But ऑडिट कैसे पढ़ना है, अब मैं आपको थोड़ा बहुत ये बताऊंगी कि आप सबने एक बार फर्स्ट रीडिंग तो कर ली होगी सब, क्योंकि सबका मे अटेम्प्ट है. तो फर्स्ट रीडिंग आपकी हो चुकी है. नाउ यू गाइस हैव द सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन जो आप कर रहे हैं वो. तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, द थिंग व्हाट हैपेंस कि आपको वर्ड्स नहीं रिमेम्बर होते हैं. जो पैराग्राफ लिखा हुआ होता है वो नहीं याद रहता है. बट जब आप वो पैराग्राफ को कोई डायग्राम में बनाकर नोट करो ना, तो वो जल्दी रिकॉल होता है. कि आप कोई ऐसे पढ़ रहे हो तो वो आप ऐसे का बस इंपॉर्टेंट फिगर्स लिख लो, और उसको डायग्राम बना के लर्न करो कि हमको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, क्यों चाहिए, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो प्रोसीजर क्या है. तो जब एरोज यूज करोगे, आप डायग्राम्स यूज करोगे, तो वो जो थिंग आपको रिटेन ज्यादा होगी रादर देन द पैराग्राफ्स. एंड ऑडिट में द थिंग इज, दो टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं. कोई भी थियरी सब्जेक्ट है, लॉ ले लो, ऑडिट ले लो, दो टाइप्स ऑफ थियरी क्वेश्चंस पूछते हैं. वन इज डायरेक्ट क्वेश्चन एंड सेकंड इज केस स्टडी बेस्ड. तो डायरेक्ट क्वेश्चन का तो सिंपल है कि आप जो लर्न करके आ रहे हो, जो वर्ड्स, जो की पॉइंट्स आर द वर्ड्स दैट ICI वांट्स फ्रॉम यू. तो वो Yeah. की वर्ड्स आपको याद रखने हैं. आपको इंग्लिश मत याद करने चले जाना. इंग्लिश याद करने Yeah. जाओगे ना तो वहां पे खत्म. गलती होती है. क्योंकि आपको, अगर आप इंग्लिश याद करने जाते हो ना, तो समझ लो आपको टू नहीं याद आ रहा कि यहाँ पे टू था या फोर था, तो उसके चक्कर में आप आगे का भूल जाओगे. तो नेवर इवन ट्राई टू रिमेम्बर द पैराग्राफ, रिमेम्बर द की पॉइंट्स फॉर डायरेक्ट क्वेश्चन. नाउ फॉर इनडायरेक्ट क्वेश्चन, दैट इज केस स्टडी बेस्ड. लॉ में तो मोस्टली केस स्टडी बेस्ड ही पूछते हैं. ऑडिट में अभी चालू किया ICI ने केस स्टडी बेस्ड पूछना. तो उसमें हमारा आंसर का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, जैसे अनुज ने बोला था कि एग्जामिनर को माइंड यूज करने मत दो अपना, वरना जहां वो माइंड यूज करेगा वो मार्क्स काटेगा. तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन शुड बी ऑन पॉइंट, कि उसी के मतलब एग्जाम, आप समझ दो ना, दो जन है, दो ऑडिट के पेपर्स लिख रहे हैं. एक जन ने सिर्फ पैराग्राफ में आंसर्स लिखा है, और एक जन ने पॉइंट वाइज लिखा है, हाईलाइट किया है, डैश किया है, बॉक्स बनाया है. तो एग्जामिनर किसको ज्यादा मार्क्स देगा, जिसने ये सब एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए ताकि उसके एफर्ट्स कम हो, या उसको जो पैराग्राफ में बस लिख कर आ रहा है, राइट? तो आपके केस स्टडी बेस्ड के आंसर के फॉर्मेट क्या होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे पहले रेलेवेंट प्रोविजंस. अगर लॉ है, कंपनी लॉ है, तो सेक्शन 144, अगर ऑडिटर का आपका जो डिस्क्वालिफिकेशंस है, या फिर जो भी सेक्शन है, तो उसके उसके वर्ड्स में लिखना है. मतलब ठीक है, प्रॉपर वर्ड्स नहीं, आपको जो कॉन्सेप्ट उसका याद है उस वर्ड्स में लिखना है कि रेलेवेंट प्रोविजंस as per companies as per section 144. And also the sections are not compulsory to learn. आप सोचोगे कि मैं सेक्शन नहीं लिखूं तो मेरे मार्क्स कटेंगे. सेक्शंस नहीं लिखने से मार्क्स नहीं कटते, बट सेक्शन लिखने से आपको, एग्जामिनर को आप एक दिलासा दिलाते हो कि हाँ, इस बच्चे ने ये बच्चा पढ़ के आया है.
तो आगे वाले आंसर्स का भी उसका लीनियंसी हो जाता है चेकिंग में, राइट? सेक्शंस आर नॉट इम्पोर्टेंट टू राइट, बट इट गिव्स यू द ब्राउनी पॉइंट्स इफ यू राइट द सेक्शंस। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है कंपनी ऑडिट के सेक्शंस, अब तो शायद आपके फेमा आ गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, तो उसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो तो आपको, क्योंकि आप इतनी बार पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में फिट हो ही जाता है कि 143(1) है तो अपॉइंटमेंट, ये ऑडिटर्स जो भी आ रहे हैं 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, तो वो आपको याद रह ही जाता है। तो वो सेक्शंस कोट करो, रेलेवेंट प्रोविजंस लिखा। नेक्स्ट इज द फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या करना है, सीधा जो क्वेश्चन पूछा है ना उसी को छाप दो कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, उन्होंने ये किया है और उनके साथ ये हुआ है। तो दैट विल द फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना एग्जाम में, टाइम है तो हमेशा लिखो, ऑलवेज प्रेफरेबल, क्योंकि एज अनुज सेड कि मार्क्स हमको पॉइंट वाइज मिलते हैं कि आपने ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। तो वर्किंग नोट्स जैसे होते हैं वैसे फैक्ट्स ऑफ द केस के भी एक आधा मार्क्स होता ही है। अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में तो यू कैन स्किप द फैक्ट्स ऑफ द केस, बट अदरवाइज केस स्टडी बेस्ड में हमेशा फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है। ओके, देन रेलेवेंट प्रोविजंस, फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड देन यू हैव द कंक्लूजन। ऑलवेज राइट द कंक्लूजन पॉइंट अलग से बॉक्स बना के कि हमारा कंक्लूजन ये आया है बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन जो अबव मेंशन्ड है। आप कंक्लूजन का अलग से 1 मार्क रहता ही है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर पैराग्राफ में ही लिख देंगे कि नहीं मिस्टर एक्स इज रॉन्ग, मिस्टर वाई इज रॉन्ग, कंटेंशन ऑफ द डायरेक्टर इज रॉन्ग, या जो भी कंक्लूजन है ऊपर ऊपर नहीं लिखना है, अलग से पैराग्राफ बनाकर कंक्लूजन में लिखना है कि दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ द आंसर। तो जो केस स्टडी बेस्ड है उसका यही फॉर्मेट होता है, आपके रेलेवेंट प्रोविजंस, जो आपके नोट्स से जो आप पढ़ते हो उसमें जो प्रोविजंस लिखे होते हैं वो लिखना होता है। अगर ऑडिट की बात करो तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, फिर उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके बाद कंक्लूजन। दिस इज द प्रोसीजर दैट यू शुड फॉलो। डायरेक्ट क्वेश्चन में तो जैसे मैंने बोला कि जो की पॉइंट्स है उनको याद करना है आपको। एंड सेक्शंस के ऊपर जैसे बोला, अगर सेक्शन नहीं आते तो गलत मत लिख देना, हाँ, गलती से भी। या डोंट कोट। हाँ, अगर आपको एकदम भी ऐसा लग रहा है कि ये सेक्शन शायद गलत हो 100% सकता है, श्योर सभी। तो वो नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ता है एग्जामिनर पे कि भाई नहीं आता था तो मत ही लिखता। जबरदस्ती नहीं लिख कर आना है सेक्शन कि आप जबरदस्ती लिख कर आ रहे हो। एंड उस ऑडिट के लिए आई वुड ऑल्सो से जैसे व्हाट यू कैन डू व्हाइल लर्निंग इज, उसको आप डोंट लर्न इन इंग्लिश, सिर्फ उसको हिंदी में समझो। या क्योंकि मोस्ट ऑफ अस में देखेंगे तो हमारी जो थिंकिंग लैंग्वेज है वो हिंदी है, हम सोचते हिंदी में। नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीवन, 90% ऑफ अस हम सोचते हिंदी में। तो जब हम उसको समझ रहे हैं ना, बस उसको हिंदी में डिटेल में समझ लो, पॉइंट वाइज, कि इस ये क्वेश्चन के ये 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट्स का ये 5 पॉइंट्स क्या है उनको हिंदी में समझ लो बस। एंड जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो इंपॉर्टेंट वर्ड समझ लो। एंड देन आपको एग्जाम के टाइम पे बस उसको हिंदी का इंग्लिश कन्वर्ट करना, वो हम सबको बहुत अच्छे से आता। एंड जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट फ्रेजेज है, उसको अंडरलाइन करो, उसको बॉक्स करो, कैसे भी करो, एग्जामिनर को सिर्फ और सिर्फ वही दिखना चाहिए, उसको और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। हर पॉइंट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इफ़ यू विल सी ना, ईच एंड एवरी पॉइंट में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कि नेगेटिव अफर्मेशन वाला जो एक होता है, नेगेटिव कंफर्मेशन का, कि वो नो बोलेगा तभी जाके हम मानेंगे, तो उस चीज को बस हाईलाइट कर दो। बाकी हमने क्या इंग्लिश लिखी है ना, उसको देखने की जरूरत ही ना पड़े। जितना काम हम एग्जामिनर के लिए इजी करेंगे ना, उतना ही हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, सीधी सी बात है। एंड वन मोर थिंग आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि अभी आपका जो 1 मंथ का रिविजन पीरियड है ना, ऑडिट को मत छोड़ो। मतलब आप अगर आपका क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट सब्जेक्ट ऑडिट है तो उसको मत छोड़ो। मतलब एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ द डे, कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 आवर्स आप ऑडिट को दे रहे हो। तो इट्स ऑल अबाउट द रिटेन। रिटेन क्यों रहता है, आपको 10 साल पहले सुना हुआ देसी कलाकार वाला सॉन्ग क्यों रिटेन है, क्योंकि आपने उसको मल्टीपल टाइम्स सुना है, राइट? मल्टीपल टाइम्स। तो ऑडिट भी आप अगर मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे तो सेम चीज अगर आप 3-4 बार पढ़ रहे हो ना, तो भले आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं है, एग्जाम के टाइम लिखते वक्त आपको तुरंत क्लिक करेगा कि नहीं ये मैंने ऐसा कुछ तो पढ़ा था, कि कुछ तो याद है मेरे को कि यहाँ पे ये कुछ तो था। तो मतलब मल्टीपल रिवीजन जरूरी है ऑडिट के लिए। तो रोज ऑडिट को अगर आप थोड़ा थोड़ा करोगे ना, तो एट द एंड आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है मेरा थोड़ा तो रिटेन है मेरे में, कि 1.5 डेज में मैं उतना कवर कर सकता हूँ। And if you are revising, then it is advisable to take a practical and a theory subjects hand in hand, ताकि
आप मेंटल ना हो जाओ थियरी पढ़ते पढ़ते, ओवरलोड ना हो जाए कोई भी चीज़ का। एंड व्हाट यू कैन थिंक ऑफ, लेट्स से अकाउंट्स किसी को बहुत पसंद है या कॉस्टिंग किसी को बहुत पसंद है, इजी लगता है, टैक्स भी बहुत जनों का होता है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये सब्जेक्ट तो मेरा बोनस है, ये तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ पढ़ने के हिसाब से। जो मेन एक्चुअल दवाई लेनी है वो है ऑडिट या वो है लॉ। आप ये सोच के भी कर सकते हो तो आपको इजी रहेगा। एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, कि फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करनी है इफ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस अभी, बिकॉज टाइम कम है आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ एंड 1 वीक ही है। सो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन स्मार्टली, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन, सिर्फ वीडियो देख लिया, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया उससे नहीं होगा, बट स्मार्टली कैसे सॉल्व करें, टाइम कैसे मैनेज करें उसमें। वॉट आई यूज टू डू एंड वॉट हेल्प्ड ऑल्सो, कि अकाउंट्स का अगर क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ पूरा लेजर बनाने के, कि टू बाय अकाउंट, ये बाय कंस्ट्रक्शन अकाउंट, बाय वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट, व्हाट आई यूज टू डू कि मुझे आई यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली ऑन द बेसिस कि मुझे आंसर चाहिए। अगर मुझे आंसर निकालना आता है तो लिखने, ये सब टू बाय लिखना एंड ईच एंड एवरी अकाउंट का फुल नेम लिखना, ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, अभी हम खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन में 20 मिनट लगेंगे आपको पूरे पूरे लिखने के लिए, वो क्वेश्चन को आप जब रिवाइज करो तो 5 ही मिनट दो, 5 मिनट में हो जाना चाहिए। यानी द मेन फोकस शुड बी कि हमें पता है आपसे टू हो टू पा टू रहा मत है। लिखो। हाँ, आपसे हो पा रहा है, आप वो क्वेश्चन का जो मेन अंडरस्टैंडिंग थिंग है, बट उसमें फॉर्मूला पूरा लिखोगे, जब आप फॉर्मूला राइट डाउन करोगे तो आप पूरा राइट डाउन करोगे ताकि आपको याद हो वो फॉर्मूला, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो। जो चीज़ मैनुअल है, टीडीएस काम है, टू बाय लिखना, अकाउंट्स के नाम लिखना, अमाउंट्स तो ऑफकोर्स आप लिखोगे ही सॉल्विंग के लिए, तो जो चीज़ आप एलिमिनेट कर सकते हो वो एलिमिनेट कर दो, फालतू के सेंटेंसेस हो गया। मेन फोकस रखो कि आपका आंसर आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, एंड जो अमाउंट्स है, फिगर्स है, वो सब, जिससे आपका टाइम सेव होगा। बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में द मोर यू सॉल्व द बेटर इट इज। आपको आरटीपी एमटीपी सब कुछ सॉल्व करना है, पीवाईस क्यू सॉल्व करना है। ऑफकोर्स आपने क्रॉस क्रॉस कर रखा है तो मिनिमाइज तो हो ही गया कंटेंट। एंड अनुज, या मतलब आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि मतलब जो आपके अटेम्प्ट का एमटीपी और आरटीपी है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। कि कभी कभी क्या होता है कि जो एमटीपी आरटीपी में पूछा है ना, वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, लाइक सेम टू सेम। मेरे साथ हुआ है, मैंने एक एमटीपी में आई गेस उस वक्त अकाउंट्स और ये एडवांस अकाउंट्स अलग था ना, तो अकाउंट्स में इंडेस क्या, अभी इंडेस याद है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने एमटीपी में सॉल्व किया था, वो सेम टू सेम एग्जाम में भी आया था। तो मतलब इसलिए जो आपका रीसेंट एग्जाम का एमटीपी आरटीपी जो इशू किया है ना आईसीआई ने, वो प्रेफरेबल है कि अगर आपके पास टाइम है तो जरूर रेफर करके जाओ, क्योंकि आपका सेम क्वेश्चन आएगा अगर आपके एग्जाम में, तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा कि और अच्छा पेपर जाएगा। एंड स्टडी मैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी लोग, कभी कभी नहीं, 90% ऑफ टाइम तो स्टडी मैट से क्वेश्चन आते स्टडी हैं। मटेरियल्स। अपार्ट फ्रॉम टैक्स, टैक्स में ये चीज़ नहीं होती प्रैक्टिकल के अंदर, वो सिर्फ अमाउंट चेंज कर देते हैं। हमारे अटेंड में ऐसा क्वेश्चन था कि लिटरली एज इट इज इंडिया का, सॉरी एएस का क्वेश्चन है, एक हाँ, जीरो उन्होंने कम कर दिया बस। true. बिलीव करेगा कोई स्टूडेंट ये चीज? 4 मार्क्स का क्वेश्चन। सो वी कैन टेक डिफरेंट क्वेश्चंस yeah. आल्सो, आई गेस सारे क्वेश्चंस पाइल्ड अप है। Yeah, I was about to say, there's one more question, मतलब जो बहुत फेमस है, इवन मैं पर्सनली भी पूछने वाली थी अगर कोई ना पूछता तो, लाइक हाउ टू कवर द 2 chapters ऑफ ऑडिट जिससे सब स्टूडेंट्स डरते हैं। वन इज डिफरेंट एंटिटीज एंड अदर वन इज आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? तो आप दोनों ने ये दोनों टॉपिक्स को कैसे टैकल किया अपने टाइम पे व्हेन यू स्टडीड? प्लीज टेल अस। आई थिंक बिकॉज सीए इंटर में ये सब्जेक्ट बिफोर आर्टिकलशिप पढ़ाया जाता है, तो नॉट एवरीबडी कैन रिलेट कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों, मतलब आफ्टर आर्टिकलशिप यू माइट कम टू रिलेट कि हाँ ऐसे वाउचिंग करते हैं, ऐसे असर्शंस को चेक करते हैं। तो उसमें मतलब मोस्टली ऑडिट में क्या होता है, आईसीआई जस्ट वांट्स टू सी 5 पॉइंट्स फ्रॉम यू, मोस्टली कि आप पूछा जाता है, एग्जाम का यही पैटर्न रहता है कि 5 पॉइंट्स लिखो, 5 मार्क्स ले लो। तो जस्ट आई थिंक आप क्या कर सकते हो, जो पॉइंट्स है, बहुत सारे आई गेस पॉइंट्स होते हैं, असर्शंस कैसे चेक करना है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ असर्शंस, क्या चेक करना है, तो उसको आप एक स्टोरी फॉर्मेट में लर्न कर सकते हो कि अगर मैं एज अ ऑडिटर जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये चीज कर रहा हूँ, फिर ये चीज, और बस 5 पॉइंट्स याद रखो। अगर आपसे उससे ज्यादा नहीं लर्न हो रहे हैं तो इट्स ओके, डोंट फ्रेट अबाउट इट, जस्ट
learn the 5 points that it is. और ठीक है, वास्ट अगर है एरिया, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आपने नोट से पढ़ा और उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो. अगर कोई भी एरिया वास्ट होता है ना, तो आई थिंक उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना ज्यादा प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि यू वोंट नो कि क्या क्वेश्चंस बना के पूछ ले. तो जो जो क्वेश्चंस एटलीस्ट बने हुए हैं वो आपके दिमाग में फिट रहे कि ये क्वेश्चंस तो एटलीस्ट मुझे आते हैं, तो आई थिंक क्वेश्चन बैंक उसमें रेफर करना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा. एंड उसमें जो भी अमेंडेड चीजें रहती है ना इस अटेम्प्ट की एंड लास्ट अटेम्प्ट की, ऑडिट के अंदर भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स होते हैं जो बोल्ड में दिखते हैं, वो बहुत मस्त है. उसमें से क्वेश्चंस आते हैं 5 से 10 मार्क, वो कर लेना. एंड मोस्टली मतलब अभी तो आपका 1 महीना है, तो ये ज्यादा कुछ काम तो नहीं आएगा, लेकिन थियोरी सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा फन लाना पड़ता है पढ़ाई करते वक्त. मतलब आप अगर एकदम बोरिंग तरीके से पढ़ रहे हो कि आप बस ऐसे बुक लिया हुआ है ना, यू आर जस्ट रीडिंग इट आउट, रीडिंग इट आउट, रीडिंग इट आउट, यू विल गेट एग्जॉस्टेड. आप ऐसे उठो, चलो और चलते चलते से अपने आप को पढ़ाओ कि ये ऐसे में ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था. लेट देयर बी अ फन एलिमेंट इन योर थियरी सब्जेक्ट, क्योंकि सबको थियरी बोरिंग लगता है. तो बोरिंग हटाने के लिए, बोरियत हटाने के लिए थोड़ा फन एलिमेंट लाओ कि बैठ के मत पढ़ो. मैं क्या करती थी, फॉर मी, मैं एक जगह पे बैठ के नहीं पढ़ सकती थी, तो आई यूज टू ऑलवेज चेंज माई प्लेस ऑफ स्टडी. कभी बेड पे बैठ के पढ़ रही हूँ, कभी चल के पढ़ रही हूँ. एटलीस्ट थियरी सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल तो बैठ के ही करना पड़ता है. कभी चल के कर रही हूँ, कभी बाहर जाके कर रही हूँ, तो मतलब तो एनवायरनमेंट चेंज होता था, थोड़ा मेरा माइंड रिफ्रेश होता था. और मतलब थोड़ा मतलब इट इज वेरी फन टू डू इट एक्चुअली फॉर मी. दैट्स ग्रेट टेक कृतिका. अगर मैं अपने अटेम्प्ट की याद करूँ तो ये दो चैप्टर्स तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्केरी थे, तो मैंने उसका एक सॉल्यूशन ये निकाला था कि व्हाट आई यूज्ड टू डू एट माय टाइम वाज आई यूज्ड टू जस्ट सी last three attempts RTPs, हाँ, PYQs ट्रू and क्वेश्चन. MTPs only of these only of these two chapters specifically, यस. and I used to just learn them and मेरा उससे काम हो गया था. like MCQs वगैरह में at least I was able to या tackle. मतलब जो या सब्जेक्ट, जो चैप्टर्स दैट्स आपको ओके. ज्यादा स्केरी क्वेश्चंस लगते इसके हैं हाँ अवेलेबल है, तो बिफोर द क्वेश्चंस कि आपको एटलीस्ट वो तो पता हो कि वो हाँ क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. ट्रू. करेक्ट, मतलब कुछ नहीं से कुछ तो करना ही चाहिए कुछ ऐसा. तो करना ही चाहिए. सेम सेम. हम्म. तो यू विल नॉट बिलीव बट मैंने ये दोनों चैप्टर्स में अप्रोक्सीमेटली कुछ 10% ही कवर किया होगा, विच इंक्लूडेड विच वाज ओनली द अमेंडेड पार्ट्स, द बोल्ड में जो आता है करंट अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट, एंड जो पीछे आईसीआई का स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस रहते हैं. तो बट यस, इट वर्कड. मे बी आई वाज लकी, इट वर्कड. एज अनुज सेड कि 80% ही मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, मतलब हाँ. 80 एंड 80 मार्क्स का ही आपको आने वाला है. तो थोड़ा बहुत वो बैक ऑफ द माइंड में अगर आप सब कवर करने जाओ ना, कि आपको कि हाँ सभी कवर करना है, कि आपको सब, तो वो नहीं कुछ भी कवर होगा. नहीं होगा. सब करेक्ट कवर करेक्ट. नहीं होगा. कुछ ना, जैसे वो क्या था वो वाली मूवी में कि कुछ ना कुछ छूटेगा ही बनी. तो इस सीए इंटर सीए फाइनल में भी कुछ ना कुछ छूटेगा. यू कांट कीप इट कि आप ईगो पे नहीं ले सकते कि नहीं भाई मैं तो सब कवर करके जाऊंगा. यू कांट Same. डू दैट, ऐसा नहीं होता है. Yeah. So even हमें regarding this point, even if I got costing में 100, तो भी मैंने costing में कुछ टॉपिक छोड़े थे, 100% कवरेज नहीं किया था. एंड एज आई सेड इन ऑडिट कि मैंने जो दो सबसे वास्ट चैप्टर जिनसे सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है, मैंने उसमें जितना भी कवर किया है 10% जितना बताया मैंने, फिर स्टिल आई गॉट 79 इन ऑडिट. सो ऐसा नहीं है कि ये दो चैप्टर्स आपने नहीं किए तो आपको बाकी चीजें आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे. आप अगर आपने बाकी चीजें बहुत अच्छे से की है, एकदम क्रिस्प में कवर किया है, एज आई सेड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आपको जितना आता है ना, if वो क्वेश्चन में आए तो उसमें आपको फुल आने चाहिए. बस आपके 80 मार्क्स से पेपर में से यू हैव टू टारगेट द मैक्सिमम, बिकॉज वो सारी चीजें आपको लिटरली में आती है. अगर आपने बाकी चीजों में ज्यादा फोकस नहीं किया है, सिर्फ क्वालिटी के ऊपर देखा है. एंड ऑल्सो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि राइटिंग प्रैक्टिस इज रियली इम्पोर्टेंट. मतलब आप अभी अगर रिवीजन कर रहे हो, आप सॉल्व कर रहे हो, आपसे हो रहा है, आप पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे हो, आपको क्वेश्चन भी पता चल रहा है कि ये इस ऐसे से है, ये ऐसे है, लेकिन जब तक आप उसको राइटिंग में नहीं रखोगे ना, तो वो 3 आवर्स में आपका पेपर कंप्लीट होना इज वेरी डिफिकल्ट. सो मॉक टेस्ट जो देते हैं सब, देना Yeah. इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई पर्सनली गेव 3 मॉक टेस्ट एक्चुअली, 2 of ICI and one from my coaching. तो मतलब वो राइटिंग प्रैक्टिस हेल्प मी फॉर्म स्ट्रैटेजी फॉर दोज 3 आवर्स, कि मेरे को 3 आवर्स में ऑप्शन कैसे निकालना है,
फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एमसीक्यू पहले लेना है या फिर डिस्क्रिप्टिव पहले लेना है, फिर अगर मेरे को कुछ नहीं आए तो उसको छोड़ना है या उस पे ही बैठे रहना है। तो वो आप अगर मॉक टेस्ट दोगे ना तो आप वो 3 आवर्स कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे वो आपको पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट इज वेरी नेसेसरी। ठीक है। Okay, there's one more question related to FM from Smith Patel. Like, how to memorize formulas in FM, especially he's asking about ratios chapter. How did you memorize formulas? Like, did you find a way to first understand their logic and then memorize, or did you use any specific tricks to memorize? आई डोंट रिमेम्बर एनी ट्रिक्स। फर्स्ट थिंग इज आपके पास सारे फॉर्मूलाज एक शीट में होने चाहिए, 2-3 पेजेस के अंदर। एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज आर लॉजिक बेस्ड। इफ यू सी वर्किंग कैपिटल का क्या होगा, टर्नओवर रेशो क्या होगा, एसेट टू टर्नओवर रेशो मोस्टली सेम ही रहते हैं कि डिनोमिनेटर सब में सेम ही है, न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। द लॉजिक हैज टू बी क्लियर। सो 80% ऑफ फॉर्मूलाज होंगे लॉजिक ड्रिवन, 20% ऑफ फॉर्मूलाज ऐसे होंगे जिनका आपको लॉजिक नहीं पता है, रट लो। उसमें कोई दूसरा ऑप्शन मत देखो बहुत ज्यादा कंसेप्ट में, बिकॉज अभी आपके पास टाइम नहीं, 1 महीना है। सो 80% आर आई थिंक लॉजिक ड्रिवन Yes, correct, एंड correct. या मोस्टली लॉजिक ड्रिवन है। बचे हुए एंड जो नहीं है ना, जो आपको हार्ड लगेंगे ना, वही है जो आपको लर्न करना है, जिसमें आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हो ना, जिसकी वजह से आपको बचे हुए हार्ड लग रहे हैं। इफ यू सी ये हर जगह परेटो प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। 80% ऑफ कोर्स इजी ही है। लोग 20% को देख के बोल रहे कि पूरा का पूरा हार्ड है, पूरा सब्जेक्ट ही हार्ड है। लोग सिर्फ ये ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज एंड आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे कि इतना बोरिंग सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट्स भी तो है। एंड मोस्टली एफएम में आई थिंक कि फॉर्मूलाज क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो ही जाते हैं कि इतने हो सारे जाते हैं, डिफरेंट हो जाते वैरायटी हैं। ऑफ क्वेश्चंस हैं या कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगने वाला है। हाँ, सो फॉर्मूलाज तो आर नॉट रियली अ बिग डील, रेशियो एनालिसिस क्या हो या कोई भी एक्सरसाइज चैप्टर के हो, बिकॉज आप जब सॉल्व करते हो आप लिख के करते हो। जैसा स्मार्टली अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला तो लिखना ही है, तो हो जाता है। फॉर्मूलाज आर नॉट अ एंड बिग डील। रेशियो एनालिसिस में भी मोस्टली जो पूछते हैं लाइक उतने 10-12 ही रेशियोज हैं जो पूछे जाते हैं। तो मतलब वही आपका थोड़ा स्ट्रैटेजी वैसा होना चाहिए कि पास पेपर्स में कौन से फॉर्मूलाज पूछे जा रहे हैं। और मतलब आप अगर कोई कोचिंग रिफर कर रहे हो या फिर कोई क्लासेस रिफर कर रहे हो तो वो भी बताते ही हैं कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। तो अगर आपसे सब नहीं लर्न हो पा रहा है तो फिर जस्ट वो फॉर्मूलाज आप रिकॉल करके जाओ। Oh, yeah, Anuj and Kritika, completely agree with your take. There's one more question related to tax now. Like when it comes, अच्छा, Raina Sheikh has asked, when it comes to tax, how to prioritize the topics and how much time to be given to which question or which chapter particularly. ओके। सो या हाँ, फर्स्ट अनुज कैन को। एक एक ओवरऑल टैक्स से बोलूँ तो अभी लाइक इट्स ए 50-50 इन इन द न्यूज स्कीम, इट्स 50-50 राइट, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, या ना, है ना। हाँ हाँ, इट्स 50-50। हाँ हाँ, या सो तो पहली बात तो उसको 50-50 वेटेज दो, जीएसटी को भी 50% वेटेज दो, उसको इग्नोर मत करो। हमारे अटेम्प्ट में क्या होता था, 60 मार्क्स का डीटी होता था, डायरेक्ट टैक्स, एंड 40 मार्क्स वॉज इनडायरेक्ट टैक्स विच वॉज जीएसटी। सो पीपल यूज टू गिव 90% टाइम टू इनकम टैक्स एंड 10% टाइम टू जीएसटी। वेयर एज सीन ऐसा था कि जीएसटी वॉज लिटिल बिट इजी। अभी तो आई गेस बहुत सारी चीजें इंटर में डाल दी गई है, हमारे टाइम पे सिर्फ ओवरव्यूज ही थे। सो देयर वाज नथिंग इन डेप्थ। सो फर्स्ट थिंग इज कि ये दोनों सब्जेक्ट्स को आप इक्वल वेटेज दो। एंड चैप्टर्स में आई थिंक कृतिका, द 5 हेड्स ऑफ इनकम, ऑल द हाँ, फाइव मतलब हेड्स मोस्टली इंटर में इट्स पीजीबीपी कि आपका जो फर्स्ट या क्वेश्चन होता है वो पीजीबीपी से ही आता है मोटा मोटी। ठीक है, कैपिटल गेन का मे भी एक पॉइंट आ जाए, आईएफओएस का मे भी एक पॉइंट आ जाए, बट मोस्टली इट्स पीजीबीपी। तो पीजीबीपी पे ही मोस्टली ज्यादा फोकस करना है फॉर डायरेक्ट टैक्स। और मेरे को ऐसा लगता है इनडायरेक्ट टैक्स इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट टैक्स इज वेरी इजी। इट्स वेरी और इजी, अब तो यस। आपका 50-50 वेटेज है, तो मतलब 50 मार्क्स स्कोर करना आपको कंपेरेटिवली इजी पड़ रहा है कंपेरेटिवली वो 50 मार्क्स जो डायरेक्ट टैक्स के बिलोंग करते हैं।
तो आप उसके हिसाब से भी फोकस कर सकते हो कि अगर आपको अच्छा। इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा इजी लग रहा है तो फर्स्ट फोकस ऑन इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वेटेज तो सेम ही है। फिर डायरेक्ट टैक्स क्योंकि थोड़ा वास्ट हो जाता है, थोड़ा कवरेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। तो अरे हाँ, टीडीएस, टीडीएस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर अटेम्प्ट में 8 मार्क्स टीडीएस के पूछते ही हैं। मतलब यू कैन स्किप दोज टॉपिक्स जो आने ही वाले हैं, मतलब पता ही है हाँ। कि वो उस से पूछेंगे ही उससे। तो यू कैन स्किप दोज टॉपिक्स, ठीक है। जो टीडीएस में भी सारे सेक्शंस मत पढ़ो, जो जो इम्पोर्टेंट है, 194C, 194J, 194, और आपके जो न्यू अगर अमेंडमेंट्स आए हुए हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डायरेक्ट टैक्स में भी अमेंडमेंट्स इज फर्स्ट प्रायोरिटी, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि फर्स्ट थिंग इज आप सब कुछ पढ़ ही नहीं सकते। ऑल इंडिया रैंक 1 हो या 50 के 50 को बुला लो, कोई भी नहीं बोलेगा कि हमने डायरेक्ट टैक्स पूरा कवर किया है। पूरा कवर नहीं हो सकता। एंड ऑफ कोर्स कुछ तो पेपर में ऐसा आएगा ही जो आपने कवर नहीं किया है। तो जो भी आपकी कोचिंग में या जो भी आपने खुद के एनालिसिस के हिसाब से जो चीज़ें छोड़ रखी है उनको छोड़ दो। डायरेक्ट टैक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि पीपल फोकस ऑन प्रोविजंस प्रोविजंस प्रोविजंस, ये प्रोविजन ये है, ये लिमिट्स ऐसी है, एंड उसमें सॉल्विंग नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ये टाइम। टैक्स में सबसे ज़्यादा आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो वो इसलिए होगी क्योंकि आपने सॉल्व नहीं किया। एंड कभी भी पेपर उठा के देख लो, पेपर में सब क्वेश्चन बहुत नए होते। द क्वेश्चंस आर रियली न्यू फॉर एनी पर्सन जिसने सारे प्रोविजंस को 6 बार रिवाइज करेगा, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो आपको टैक्स में स्पेशली एक फोकस करना, जो मैंने भी सुना है देखा था, कि सभी लोग सॉल्विंग पार्ट इग्नोर कर देते कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के अंदर। तो आपको उसमें सॉल्विंग इज अ मस्ट, उसमें आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा। आरटीपी एमटीपी उसमें मस्ट है, बाकी चीजों में लेट्स से फॉर टाइम, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आपका मिस हो भी रहा है अकाउंट्स में या कॉस्टिंग के अंदर, बिकॉज लॉजिक वही है। इफ आपने नोट्स पढ़ रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में। बट टैक्स में आपने लॉजिक कितना भी पढ़ रखा हो, आपने प्रोविजन कितना भी पढ़ रखा हो, अंटिल अनलेस आपने थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है, आपने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन फॉर्म कैसे होता है, उसका फ्लो कैसे जाता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप टैक्स में फेस करना इट वुड बी वेरी हार्ड। सो आई वुड सजेस्ट कि टैक्स में आप थोड़ा सा सॉल्विंग प्रैक्टिस को ज्यादा फोकस करो, जो मोस्टली लोग नहीं करते क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा है, रिवाइज करने के लिए इतना ज्यादा। एंड जीएसटी में एंड यू कैन फोकस मोर सॉल्विंग बिकॉज वो एंड स्कोरिंग ज्यादा है। एंड टैक्स में मतलब जो भी आप क्वेश्चन करते हो ना, जैसे अनुज ने सबसे पहले बोला था कि आप वो पॉइंट मार्क कर लो जो। तो टैक्स में मोस्टली क्या होता है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, सब में सिमिलर सिमिलर ही पूछा जाता है सारे अटेम्प्ट्स में। बस उसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे पूछेंगे ना कि पता ही नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो अभी आपका फर्स्ट सेकेंड रिवीजन जो भी चल रहा है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होने चाहिए, और वो क्वेश्चंस में जो भी आपको पॉइंट एकदम हटके पॉइंट लग रहा है ना, वो मार्क करना चाहिए। और रिवीजन मतलब जब एग्जाम के टाइम पे वही पॉइंट देखना चाहिए आपको, कि वो पॉइंट देखा, हो गया, प्रोविजंस पढ़े, वो पॉइंट देखा, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए, डन। इवन मैं अपने टाइम पे कैसे करती थी, आई स्टिल रिमेम्बर। लाइक सपोज लीव इनकैशमेंट का प्रोविजन है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि कोई ऐसा क्वेश्चन है लीव इनकैशमेंट का जो मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं वो लिख देती थी, रेफर क्वेश्चन नंबर दिस दिस ऑन पेज नंबर दिस दिस फॉर या अंडरस्टैंडिंग दिस होल कंसेप्ट इन वन गो। तो लाइक या आई अग्री, कंप्लीटली अग्री कि स्टूडेंट्स जस्ट फोकस ऑन थियरी एंड मेमोराइज, बट प्रैक्टिकल में दे आर नॉट एबल टू अप्लाई दोज प्रोविजंस इन रियलिटी। So we have one more doubt from Ayush Bajaj. He is secretary of a Kalyan Dombivli Vikasa, uh, which is very common even for final students as well, not only limited to inter. Can you please address on the problem where students face a lack of motivation and discipline? How did you manage this if you face this problem? अच्छा। सो फर्स्ट थिंग मैं ये बोलूंगा कि अभी तक आपके जितने भी, नॉट अभी तक पर से, बट जो भी आपके स्टार्टिंग के मंथ्स थे इंटर की जर्नी के, वो अब मैटर नहीं करते। अगर आपने उसमें कम भी परफॉर्म किया तो चलेगा। जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, विच आई वी हैव एनालाइज्ड, इज इंटर के टाइम पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स आर द लास्ट 2.5 मंथ्स, 2.5 to 3 मंथ्स। एंड बिकॉज अभी सब्जेक्ट्स भी कम हो गए हैं, थोड़ा सा कोर्स भी कम हो गया है, तो आई गेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज 1.5 months to 2 months। अगर आपने इस टाइम पे पूरा अपना 100% दे दिया, इवन इफ यू हैव नॉट गिवन योर 100% ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ्स, तो भी आपका रैंक आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पास हो सकता है, आपका रैंक आ सकता है अगर आपने लास्ट के इतने महीने में अपना 100% दे दिया। आपको यू कांट बी रिजल्ट ओरिएंटेड कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए। यू हैव टू बी एफर्ट ओरिएंटेड कि क्या मैंने मेरा 100% दिया है।
if you give your 100%, then वो होना ही है. Nobody can stop it. And discipline, as we discussed in the starting phase, it's very hard to be disciplined. Honestly, it's very hard to be disciplined when you have to study for so much hours and for so much days without any external without any external, we can say, communication to the world, because more or less we are isolated इस टाइम पे. तो यही कीप रिवॉर्डिंग योर सेल्फ, कीप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. हमारा माइंड वैसे वर्क करता है, तो उसको थोड़ा बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दो. एंड यस, सेटिंग डेली And टारगेट्स. आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड, मतलब मोटिवेशन तो लाइक टू टाइप्स के होते हैं. एक एक्सटर्नल हो गया, एक इंटरनल हो गया. हम अभी आपको आके कुछ भी बोल ले, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन. वो आपका 2 दिन रहेगा कि 2 दिन यू आर मोटिवेटेड कि नहीं भाई ऑल इंडिया रैंक लाना है, 4 देना है, लेकिन वो सिर्फ 2 दिन ही रहेगा. as long as you don't find your internal motivation, what drives you, कि आपका वाई क्या है, वाई आर यू डूइंग सीए, वाई सीए, जब तक वो आपको नहीं पता है ना, अंदर से आएगा मोटिवेशन कि नहीं भाई मुझे करना है. देर इज नो ऑप्शन, अदर ऑप्शन है ही नहीं कि मैं कुछ और करूं. फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन. एंड ऑलवेज रिमेंबर, आई हैव दिस लाइक कोट बोलो या कुछ भी, स्टडिंग डजंट सक एज मच एज फेलिंग. तुमको लग रहा है कि भाई पढ़ाई नहीं करनी यार, थक गए, तो इट डजंट सक एज मच एज फेलिंग. एंड अगर आपको और मोटिवेशन चाहिए तो जस्ट अगर एक दिन पढ़ाई करते हुए थक गए कि यार अब नहीं हो रहा, जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द रिजल्ट डे. इमेजिन कि आपने लैपटॉप या फोन खोला एंड यू आर टाइपिंग योर WRO एंड योर पासवर्ड एंड यू सी पास सक्सेसफुली पास CA इंटर. the flow of emotions that you will go through, मतलब आप तो छोड़ो, the flow of emotion your parents will go through. उनकी चेहरे पे हंसी खुशी, and everybody is calling you, congratulating you that you have cleared CA inter in first attempt or any other attempt. मतलब उधर से ही मोटिवेशन आ जाता है कि वो रिजल्ट क्या होगा. एंड एज अनुज सेड, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है. मतलब ऐसा नहीं कि रिजल्ट को लेकर ही बैठ रहे हो आप कि ऑल इंडिया रैंक लाना है तो वही लाना है. यू हैव टू बी एफर्ट ओरिएंटेड. भगवत गीता में भी कहा है कि फल की चिंता मत रखो, अपने कर्तव्य पे फोकस करो. तो कर्तव्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट. और एक और चीज कि सबको मतलब 5 दिन सब मेहनत कर लेंगे, राइट? 5 days everybody is consistent, everybody is motivated, everybody is putting 12 hours a day. What was 6th day? वो 6th day कौन बुक्स उठा रहा है, वो 6th day कौन पढ़ रहा है, वही वो 15% में आएंगे ना, वही वो 20% में आएंगे. नाउ इट्स जस्ट योर चॉइस कि तुमको वो 15% में आना है या वो 85% में आना है. दैट इज योर मोटिवेशन. ये मोटिवेशन रखो कि ऐसा कल्याण डोंबिवली ब्रांच से इनवाइट आए आपको भी. So true. Okay, we Yeah. have another question from Webury, which is a very common question for all CA fraternity, I would say. Once I completed one subject and started the next, after a week or more, I feel like I'm forgetting what I learned earlier about that completed subject. How can I Yeah. revise it with daily targets? या सो ये बहुत ही सही क्वेश्चन है. इसका बहुत ही सही आंसर हमको दिया था हमारे फैकल्टी ने. सो इसका ये था, थोड़ा सा लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट, डोंट माइंड इट. कि आप थियरी सब्जेक्ट से ले, लेट्स लॉ एंड ऑडिट, कि आप जो पढ़ रहे हो, आप 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, क्या आपको लगता है कि 6 सब्जेक्ट्स हमको अभी 3 साल बाद याद है? ईच एंड एवरीथिंग जो हमने पढ़ा है नहीं याद है. क्या आप वो 6 के 6 सब्जेक्ट्स पे आप अपनी आर्टिकलशिप करने वाले हो? ऑफ कोर्स नॉट. आपको यूज कोई एक ही सब्जेक्ट आएगा या कोई भी पर्टिकुलर नॉलेज आएगी जो आप ओवर द टाइम भी गेन कर सकते हो. इट्स नॉट ए बिग इशू कि आपने अभी जो लर्न कर लिया सीए इंटर एग्जाम के टाइम पे, वो आपके दिल दिमाग में हो जाना चाहिए कि आपको जीवन भर याद हो. तो हमको मैम ने बोला था कि आपको ऐसे ही पढ़ना है ऑडिट को, कि बस आपने आज पढ़ा है ना जो चीज़, आपको कल याद है, परसों याद है, कल और परसों 2 दिन याद है बस. अगर आपने उतना कर लिया आपके लिए बहुत है. क्योंकि आप, अगर आपने जो आज पढ़ा है वो आपको कल और परसों याद आ रहा है,
एज स्टार्टिंग में कहा था कि जो चीज़ 1.5 दिन में रिवाइज होगी 1.5 डेज में, वही आप एग्जाम में दे पाओगे। सो अगर आपको वो 1.5 डेज में आपने रिवाइज किया तो आपको एग्जाम के दिन याद है ना, तो फॉरगेट, इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉरगेट जो लिख दिया है, क्योंकि वो वैसे भी यूज नहीं आने वाला इतना। जब आर्टिकलशिप में यूज आएगा तब यू विल ऑल एनी हाउ रिमेंबर कि क्या लिखा था। सो अगर जब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो एक फीलिंग आती है कि पुराना सब्जेक्ट सब भूल गया है, विच इज ट्रू, क्योंकि हम भूल जाते हैं अनटिल अनलेस वी रिवाइज। जब हम वापस से रिवाइज करेंगे ना, जो कि हम करेंगे ही करेंगे 1.5 दिन के अंदर, तो जब हम रिवाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ याद आई जाती है। तो ये एक होता है, ये सीन सबके साथ होता है कि हमें लग रहा है कि हम सब भूल रहे हैं, पुराना सब भूल रहे हैं, विच इज ट्रू। चूंकि आपको भूलना है, तब अब भूलोगे नहीं तो आप नया कैसे याद रखोगे, नई चीज पे कैसे फोकस करोगे, पूरा दिन आपका दिमाग वो नई चीज पे ही होना चाहिए। बट वेन यू रिवाइज द ओल्ड थिंग, यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो, गेट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग विच यू लर्न। एंड ऑल्सो वो साइकिल भी कम होते जाता है, लाइक फर्स्ट टाइम यू रिवाइज एंड देन यू पिक अप अनदर सब्जेक्ट, बट द सेकेंड टाइम यू पिक अप द सब्जेक्ट, अगर पहले 5 दिन लग रहे थे तो अभी वो 3 दिन में रिवाइज हो रहा है। तो लगेंगे ऐसा नहीं है कि यू आर फॉरगेटिंग, तुम्हारा रिटेन रह रहा है एंड वो फास्टर रिवीजन हो रहा है फास्ट तुम्हारा, हो तो दैट इज इन गए। यस, फॉरगेटिंग, दैट इज जस्ट कि आपको बस रिटेन नहीं रह पा रहा है उतना। तो एग्जाम के टाइम पे आपको, जब आप एग्जाम का पेपर लिख रहे होगे तब आपको याद आने ही वाला है फॉर श्योर। फॉर श्योर, यस। बिकॉज रिवीजन पैटर्न भी ऐसे होता है, फर्स्ट रिवीजन में 7 डेज लगते हैं, सेकंड में 4 to 5 लगते हैं, थर्ड में 3 दिन लगते हैं, एंड फोर्थ इज दैट 1.5 डेज। तो ये बस एक थॉट है, थॉट प्रोसेस है कि याद नहीं है, डर है, फियर है, जो आप एकदम इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आप जब रिवाइज करोगे आपको तभी याद आएगा ना, आप रिवाइज करोगे ही करोगे। तो या, डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस अभी पेंडिंग में? Yeah, there is question on accounting standards by Amol, like how to deal with accounting standards. इतने सारे AS है and आज पढ़ा तो परसों तक साफ हो जाता है दिमाग से. Same, I guess, same context like you सेम answered क्वेश्चन now. है। But yeah, how did you dealt with accounting standards? Like, how did you study it at your time particularly? सो आई हैड क्रेजी नोट्स। आई वुड ओनली जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मार्क्स है, आई वुड लाइक, मैं नोट्स के ऊपर ही दूंगा कि वो नोट्स की वजह से है, मेरी वजह से नहीं, नोट्स की वजह से है। तो मैंने ऑनलाइन एक सर के लिए थे, हिज नेम वाज CA नितिन गोयल फॉर अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग। सो आई नोट्स मैंने उनके लिए थे, लेक्चर्स उनका यूट्यूब पे अन अकेडमी पे फ्री था। अभी क्या है आई डोंट नो। तो उनके नोट्स वर क्रेजी। सो ही हैज कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, एंड इतना डिटेल के अंदर एंड इतना सिंपली। सो इफ यू हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अच्छे से नोट्स आपने एक बार में लेक्चर्स के टाइम पे या रिवीजन के टाइम पे रिवीजन लेक्चर देख रखा है, तो इट वुड गो थ्रू, एंड अगेन जो याद नहीं रहता है वो वाला भी कवर्ड। मेरा अप्रोच एक्चुअली डिफरेंट था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेके। मेरा अप्रोच नोट्स बेस्ड नहीं था, क्वेश्चन बैंक बेस्ड था, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव सीन कि जो सेट क्वेश्चंस हैं, 10-12 क्वेश्चंस हैं, वही पूछते हैं। मतलब सच कुछ इतना वेरिएंस नहीं होता है, जो सेट आपके स्टैंडर्ड 15 क्वेश्चन है वही पूछेंगे। तो मेरा मोस्टली फोकस क्वेश्चन बैंक में था कि मैं ये क्वेश्चन रेफर कर रही हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रेफर कर रही हूँ, क्योंकि इतना सारा इंडेक्स का कंटेंट एक साथ नहीं रिट्रीव हो पा रहा था। तो आई यूज टू फोकस ऑन दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंस्टेड, कि ये क्वेश्चन तो रेफर करना ही है। या अप्रोच कुछ भी हो सकता है, विच एवर सीम्स यू फिट। Okay, so the area has asked a question which is one of our MCM. Are there any mistakes that any of you did during your preparation? धैर्य अगर mistake की होती then they wouldn't be guiding नहीं us. नहीं, नो नो, was lot of mistakes. एक्चुअली Of course, everyone does वही, mistakes. ये एक्चुअली मतलब हमारा न, मेरा नवंबर हमारा कृतिका, नवंबर में अटेम्प्ट था आई ना। गेस यस, कृतिका वॉइस ब्रेक हो रहा है ना? मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? या ना आपका ही voice break हो रहा है when you're speaking. कृतिका, 1 सेकेंड। या By then, Anuj, you can answer the question. या एक समय भूल गया था, या मिस्टेक्स विच वी डिड। Yeah. तो या फर्स्ट मिस्टेक आई डिड वाज कि मैंने बहुत ही
सो स्टार्टिंग के जो मंथ्स थे 7-8 मंथ्स बहुत ही लीनियंटली ले लिया था, बहुत ज़्यादा लीनियंटली ले लिया था। सो कवरेज काफ़ी कम था, काफ़ी सारी चीज़ें छूटी हुई थी। सो फर्स्ट मिस्टेक वॉज दैट विच आई थिंक। एंड जो अच्छा चीज़ किया वो ये था कि लास्ट के 2-2.5 महीने पता था कि यही चीज़ मैटर करने वाली, तो उसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया। एंड वन थिंग विच आई वुड से वाज मेंटल हेल्थ, बट इट इज़ ऑल्सो डिबेटेबल टॉपिक। क्या इफ आप कोई चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करोगे एंड आपका, या द थिंग विच आई थिंक आई मिस्टेक्ड पर्सनली वाज माय स्लीप शेड्यूल, कि सुबह 7 बजे सोना, तो इट रियली हार्म योर बॉडी। सो या मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, थोड़ा सा, बिकॉज थोड़ा बहुत तो खराब होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता अगर आप इतना ज्यादा फोकस्ड हो कोई चीज के लिए। सो या एम आई ऑडिबल? या कृतिका। या तो फर्स्ट मिस्टेक तो यही थी, जैसे अनुज ने बोला कि बहुत ही लीनियंटली ले लिया था। आंखें ही जून जुलाई में खुली कि ओ हाँ या सीए इंटर है कि ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि आप बिना पढ़े आप दे दोगे और आप पास हो जाओगे। तो या दैट वाज वन मिस्टेक। एंड अनदर मिस्टेक वाज कि थोड़े बैकलॉग्स ज्यादा रह गए थे, मतलब कि लेक्चर्स नहीं अटेंड किए थे और उसको वैसे ही रहने दिया था कि लेक्चर्स अटेंड ही नहीं किए। तो वो बैकलॉग्स रहना, उसको उसको और इसको कवर करना इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए बैकलॉग्स तो अ वेरी, और एक मतलब मिस्टेक नहीं है, स्लीप शेड्यूल से लेके एडवाइस था मेरा एक्चुअली कि एग्जाम के टाइम पे 6 to 7 hours ऑफ स्लीप यू शुड टेक। मतलब उसमें आप मत नेगोशिएट करो कि 4 घंटे ही सोऊंगा, 5 घंटे सो के एग्जाम देकर आ जाऊंगा। आपको एग्जाम देने से पहले एक फ्रेश माइंड से जाना चाहिए। तो 6 to 7 hours यू शुड स्लीप बिफोर एग्जाम, दैट्स व्हाट आई डिड एंड आई थिंक इट्स प्रेफरेबल। या एग्जाम के टाइम आपका मैं तो हर एग्जाम के पहले कॉफी पी के जाता था, लाइक हाई ऑन कैफीन, ताकि दिमाग चलता रहे। वही है, जितने लोगों से आप पूछोगे सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स रहेगा, सबके हम्म। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच रहेंगे। जस्ट फाइंड व्हाट सूट्स यू, जस्ट फाइंड या ट्रू। व्हाट अप्रोच सूट्स यू, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सेट होती है। क्या आप 4 बजे उठने वाले पर्सन हो या आप 4 बजे सोने वाले पर्सन हो, आपको क्या चीज सेट होता है। लाइक आई ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, वही आई यूज टू ड्रिंक आई गेस 4 to 5 cups ऑफ कॉफी स्टडी टाइम में, ताकि जितना पढ़ रहे वो फुल फोकस में पढ़े। और मेरा उल्टा ही था एक्चुअली, अनुज जैसे सेट की उसका नाइट शेड्यूल था, मेरा सुबह से लेके 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक का शेड्यूल था। एंड आई यूज टू नॉट ड्रिंक एनी कॉफी एनी टी। तो मतलब वो सुबह वाला शेड्यूल था मेरा, और लाइक अनुज का, तो एवरीबडी हैज या डिफरेंट अप्रोचेस। या सो आपका जो भी नेचुरल डू चीज है आप अगर व्हाटएवर वो सूट्स देखोगे, योर गुड। या अपना नेचुरल देखो कि आप किस जगह ज्यादा इंक्लाइंड हो। क्या लिखा है, पॉजिटिविटी द मॉक टेस्ट पेपर। I'll read it for you. So one question is just a sec. हाँ, as someone who takes attempt, next attempt के लिए कैसे prepare किया जाए, like how to set your mindset for someone who has been giving attempts. जस्ट याद करो जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो आपकी कैसी फीलिंग थी, या आपके जो साथ वालों की कैसी फीलिंग थी। बस क्या आप वो फील वापस करना चाहोगे कभी भी। एंड आई थिंक दैट अटेम्प्ट्स जब लगते हैं, कभी कभी क्या होता है, एफर्ट्स में कमी नहीं रहती है, हाँ। अप्रोच में कमी रहती है। तो आप अगर आपका अटेम्प्ट लगा है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज इवैल्यूएट योर अप्रोच, कि आपने क्या गलती कर दी आपने। कि अगर आप पढ़ रहे हो, रोज रोज आप इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, तो भी आप पास क्यों नहीं हो। मे बी कि आपने सिर्फ उसको पढ़ने के लिए पढ़ा है, उसको कॉन्साइज करके नहीं पढ़ा है, या फिर आपके प्रेजेंटेशन में मे बी मिस्टेक रह गई है, या फिर आपके लिखने के तरीके में मिस्टेक रह गई है। तो आई थिंक द अप्रोच मैटर्स मोर रादर देन द एफर्ट्स। तो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपका अप्रोच में आपकी क्या मिस्टेक रह गई है। तो यू शुड इवैल्यूएट दैट। या लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपना पेपर या मंगवा लो सबसे फर्स्ट थिंग इज I आरटीआई was से। I was about to say that, yeah, best या thing is to get your पेपर मंगवा लो papers and बेस्ट। compare it. एंड कुछ नहीं लगता, इट जस्ट कॉस्ट 10 रुपीज टू सेंड आईटी एप्लीकेशन। वो पेपर मंगवाओ, सजेस्टेड आंसर शीट से मैच करो, इवेल्युएट करो कि इसने क्यों मार्क्स दिए हैं मेरे को एंड इसने क्यों मार्क्स काटे हैं मेरे। आपको वो एनालिसिस आपका सेट हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप वो गलती वापस नहीं करोगे।
Yeah, absolutely agree. There's one another question like how to effectively manage studies in 1.5 days before your exam. Like how do you uh, concise all your studies 1.5 days before your exams? मेरा अप्रोच आई वुड शेयर। तो जैसे टू पहले सबसे पहले फर्स्ट तो अकाउंटिंग की एग्जाम होती है, तो उसमें तो आप 2-3 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो उसकी तो बारे में बात करते ही नहीं है। तो आप जैसे 2 से 5 के बीच में एग्जाम देकर आओ, तो 1 आवर यू रेस्ट, 1 to 1.5 आवर्स, एंड देन 6:30 to 7, 7 to 12 to 1, मतलब 1 तक मैं पढ़ती थी। और वो वाले टाइम पीरियड में मैं वो सब्जेक्ट्स उठाती थी जिसको रिटेन नहीं करना है मेरे को, मतलब ज्यादा रिटेन, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके लिए। तो वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर बड़े टॉपिक्स, थोड़े बड़े टॉपिक्स, तो उससे क्या होता है, अगर आपके वो आधे दिन में बड़े टॉपिक्स हो रहे हैं ना, तो आपको सेकेंड डे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये तो हो गया, अब तो मुझे छोटे छोटे टॉपिक्स ही करने हैं। तो इफ यू आर एबल टू, तो वो 6 घंटे में आप थोड़े बड़े टॉपिक्स उठाओ, कि आपके 2 बड़े टॉपिक्स हो रहे हैं, अच्छे टॉपिक्स हो रहे हैं। फिर द नेक्स्ट डे आप सुबह अगर थोड़ा पढ़ने, रिटेन वाला ज्यादा पढ़ रहे हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सुबह रिटेन रहता है। फिर शाम को थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स कर रहे हो और बड़े टॉपिक्स कर रहे हो। जैसे लॉ में आई वुड रिकमेंड कि एक दिन पहले, मतलब एग्जाम के जो सुबह होती है उस दिन, लिमिट्स रिवाइज करके जाओ। कि लिमिट्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, चाहे एमसीक्यू में हो या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन हो। तो लिमिट्स रिवाइज कर लो, पेनल्टीज रिवाइज कर लो, तो जो आपको रिटेन करना है ना आपको दिमाग में कि आपको ये पढ़ना है, तो वो एग्जाम के पहले पढ़ के जाओ, मतलब सुबह पढ़ के जाओ। तो दैट कैन बी वन अप्रोच। वो ज्यादा याद रहेगा, राइट? एंड या इट वुड बी, आई गेस, जो पॉइंट्स अभी तक डिस्कस किए कि आपको अपना, तो फर्स्ट थिंग, इफ आपका कंटेंट शॉर्ट नहीं है तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। रिवाइजेबल कंटेंट होना चाहिए 1.5 डेज का। आपके क्वेश्चंस कम होने चाहिए, आपके जो एडजस्टमेंट्स है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आपको पता होना चाहिए, उसके आपका लिखा होना चाहिए कि इसका ये मीनिंग है एंड इसका ये एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा। वो सब आपके फेस में होना चाहिए। आपको लेट्स लेट्स बी प्रैक्टिकल, आपके पास 1.5 डेज में रिवाइजेबल कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि जो मेजर कंटेंट है वो रिवाइजेबल नहीं है 1.5 डेज का। तो अगर आपने उसको मिनिमाइज किया है, कंसाइज किया है, तभी वो होगा। एंड या अप्रोच, जैसा कृतिका ने बोला कि जो चीज़ें याद रखनी होती है, लिमिट्स एंड ऑल, वो आपको उसी दिन रिवाइज करोगे सो बेटर है, जो एग्जाम के दिन अगर रिवाइज करे तो। सो ये आई गेस चैप्टर वाइज अगर अपने देखे तो इट्स मोर और ऐसा पर्सनल थिंग कि आपको जो चैप्टर्स इजी लगते हैं आप उसी दिन आपने वो डे बिफोर रिवाइज किया। जो चैप्टर्स आपको हार्ड लगते हैं, जो टॉपिक्स आपको हार्ड लगते हैं याद रखने में, वो आपने जितना पुश किया एग्जाम तक में, जितना लेट रिवाइज करोगे उतना ज्यादा रिटेन रहेगा एग्जाम पेपर में लिखने के लिए। सो इट इज मोर और लेस अ पर्सनल थिंग, बट या पर्सनल अप्रोच। द स्ट्रेटजी शुड बी दिस। Okay, so next question is from Mohit. How have you taken positively the mock test papers if you have got less marks in that papers? Should we evaluate our MTP after we give them? आई मीन ऑफ कोर्स यू शुड एवेल्युएट, मतलब आपको वो मार्क्स को एज ए डीमोटिवेशन कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स, समझ लो आपने एक्सपेक्ट किए थे 80 एंड यू गॉट 70 इन दोज मॉक टेस्ट, तो दैट जस्ट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है वो इवेल्युएट करने का। तो वो आपको डीमोटिवेशन टाइप्स ऑफ नहीं लेना है, पॉजिटिवली लेना है कि आपको कहाँ कहाँ अब वो आप टेस्ट पेपर में नहीं करोगे, जो मेन टेस्ट है, मेन एग्जाम है, उसमें आप वो मिस्टेक्स नहीं दोहराओगे। तो आई थिंक दैट शुड बी टेकन पॉजिटिवली इंस्टेड ऑफ इन अ नेगेटिव मैटर। या 100%। I guess we are done with our questions. Almost every question has been answered. If I have missed anyone's question, they can again write it to me personally or even in the group chat. I guess I have covered everyone's question as of now. या And if anyone wants to interact with them, they can you can raise your hand and we'll allow you to interact with them. No such problem. Yeah, Harjas, two, three points which I would like to mention Yeah, sure, exams sure. related. The first thing is, जब आपका पेपर होता है जिस भी दिन, क्वेश्चन पेपर घर ही नहीं ले जाना। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि क्वेश्चन पेपर, अकाउंट्स के एग्जाम दिया, घर पे लाए क्वेश्चन, यूट्यूब पे कोई रैंडम फिर उसको डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स के रैंडम साथ। बंदे का डिस्कशन देखेंगे या फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन देखेंगे, फिर बोलेंगे कि भाई ये तो नेवर गया डू मेरा। दैट। नेवर डू दैट। एंड द बेस्ट थिंग इज कि अगर आपके पास पेपर ही नहीं होगा, आप देखोगे कैसे?
पेपर ही मतलब so what I used to do was कि मैं या तो पेपर वहां छोड़ देता था, या अगर कभी किसी ने बोला कि यहाँ पे नहीं छोड़ना है तो जो भी फ्रेंड है आगे पीछे उसके बैग में डाल दो। पेपर ही मतलब फर्स्ट थिंग इज, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम, आपका बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी, आपका फोकस डाइवर्ट हो सकता है फ्रॉम द नेक्स्ट ट्रू पेपर ट्रू। बिकॉज ऑफ इवेल्युएटिंग द पेपर विच यू ऑलरेडी गिव, जिसका आप कुछ कर भी नहीं सकते। एंड फर्स्ट थिंग इज दैट। या या मतलब आई वुड ऑल्सो और लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि मतलब आप जो एग्जाम हॉल से पहले आधा घंटा पहले एग्जाम हॉल पे जाते हो, डोंट डिस्कस विथ योर पीयर्स कि उसने कितना पढ़ा, तुमने हाँ हाँ कितना पढ़ा। समझ लो उसने कोई ऐसा डाउट पूछ लिया कि तुमको तुमको आए ही नहीं, तो तुम्हारा कितना डिमोटिवेट हो जाओगे तुम। तो डोंट एवर डिस्कस विथ योर पीयर्स कि तुमने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। डाउट्स को भूल जाओ, किसी के डाउट्स नहीं सॉल्व करने हैं बिफोर गिविंग एग्जाम। एंड एक एमसीक्यूज के लिए व्हाट हेल्प्ड मी वाज कि फर्स्टली एक तो बुकलेट भी मंगवाई थी मैंने एमसीक्यू का सेपरेट फॉर टैक्सेशन, क्योंकि एज आई से टैक्स में टैक्स इज द सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। डायरेक्ट टैक्स इट रिक्वायर्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि ग्रुप वन में इस टैक्स एंड ग्रुप टू में ऑडिट है जो इंस्टीट्यूट यूज करता है काइंड ऑफ मार्क्स को या नंबर्स को मेंटेन करने के लिए। और एमसीक्यू में व्हाट आई वुड सजेस्ट ना कि देयर वाज अ ऐप नेम्ड आई गेस विजडम सीए। सो और ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, उन्होंने क्या कर रखा है ना, जो आईसीए के एमसीक्यूज है केस स्टडी बेस्ड एंड जो नॉर्मल थियरी एमसीक्यूज है, उन्होंने वो चीज को गेमिफाइड मैनर में कर रखी है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू बस कि मैं लेट्स से चैप्टर हो गया है, आज मैंने वो चैप्टर रिवाइज कर लिया, रात को डिनर करने के बाद या जो भी आपका टाइम है जब आप एफर्ट नहीं डाल सकते, आपको कि आप ये टाइम पे मेरा रिलैक्स मोड रहता है, बट स्टिल इफ यू वांट टू प्रोडक्टिवाइज इट देन व्हाट आई यूज्ड टू डू आफ्टर डिनर, क्योंकि एज ऑफ एकदम अचानक से हम बैठने पढ़ने नहीं बैठते हैं, तो मैं वो एमसीक्यू सॉल्व करता था। गेमिफाइड मैनर है, सो आपने रिवाइज कर रखा है, आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन है, यू हैव टू टिक इट एंड यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो ऐसा नहीं कि आप बुक देख रहे हो, आप देख अपना फोन ही रहे हो, बट इसके साथ साथ आपकी स्टडीज भी हो रही। एंड लास्ट में वो आपको अपना रिजल्ट भी बताएगा कि आपके 30 में से इतने राइट थे, इतने रॉन्ग थे, एंड जो रॉन्ग थे उनके आप जा भी सकते हो, उनके करेक्ट आंसर्स भी देख सकते हो, उनके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि ये आंसर क्यों करेक्ट है। सो इफ पॉसिबल आई थिंक दैट हेल्प्ड मी टू प्रोडक्टिवाइज माई अनप्रोडक्टिव टाइम। सो यू कैन कंसिडर दैट, यू गाइस कैन। और कुछ एडिशनल पॉइंट्स कृतिका, अगर मतलब आपको लग एक रहा है तो। चीज एक चीज आई कैन ऐड, मतलब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, थोड़ा अन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अभी मतलब यू कैन आप 10 से 15 मिनट एटलीस्ट दिन के यू कैन मेडिटेट। उससे या क्या होगा, या आपके नर्व्स बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहेंगे। मोस्टली क्या होता है एग्जाम के दिन में, इट्स नॉट दैट यू हैवंट स्टडीड, इट्स योर एग्जाम एंजाइटी दैट ईट्स यू। कि आपको इतनी एंजाइटी हो रही है, इतना नर्वसनेस हो रहा है कि आप वो लिख ही नहीं पा रहे हो, आपको आपने जो पढ़ा है वो याद ही नहीं आ रहा है। इट्स नॉट बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड, इट्स बिकॉज ऑफ योर नर्वसनेस। तो वो नर्वसनेस कंट्रोल करने के लिए यू कैन एटलीस्ट डेडिकेट, आई थिंक हाफ एन आवर आप अपने आप को दे सकते हो। वो हाफ एन आवर ऐसा नहीं कि आप उसको भी पढ़ाई में दो। वो हाफ एन आवर आप थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा शांत रह के अपने पेरेंट्स के साथ बात करो, फ्रेंड्स के साथ बात करो। तो वो उससे क्या होगा, आपके नर्व्स भी कंट्रोल में रहेंगे एंड दैट विल हेल्प यू इन दोज एग्जाम डेज। Yeah, या absolutely agree, Kritika. या बहुत जनों के साथ ऐसा ही होता है, इवन दे हैव प्रिपेयर्ड 100% यस, बट एग्जाम में जाके वो नर्वस हो जाते हैं एंड दे मिस नर्वसनेस इट। आ जाती है, ट्रू। करेक्ट। इट्स ऑल मतलब वही हो जाता है ना भाई, एक जन अगर एकदम कामली एग्जाम दे रहा है एंड समवन इज गिविंग इट विद एंजाइटी, तो उनको जो पढ़ा है उनको वो भी याद नहीं रहेगा, तो दैट इज नॉट प्रेफरेबल। Yeah, even I would मेडी like या to add कि इसके लिए one should give as much as mock test as they can हाँ, during their preparation. Yeah, Anuj, you were speaking something. या एंड आई वाज सेइंग कि मेडिटेशन का कोई सेट फॉर्म नहीं है, एज आई थिंक कि समवन फोकसेस ऑन देयर ब्रेथ, ऐसा नहीं कि आपको बस बैठ के वो एक प्रॉपर पॉस्चर है उसी मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन इफ जो हमारे रिचुअल प्रेयर्स होते हैं नॉर्मल, विच एवर रिलीजन यू बिलोंग टू, जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं नॉर्मल, आपके मंत्रास होते हैं, चैंट्स होते हैं, इफ आपका वो हैबिट है, इवन इफ यू डिवोट 15 मिनट्स एवरी डे, इट विल हेल्प अ लॉट।
आप दे सिर्फ 15 मिनट रहे हो, बट उसका जो आउटपुट रहेगा आपके माइंडसेट के ऊपर एंड आपके कामनेस के ऊपर, Yeah, वो true. अनमैच रहेगा, बट आपको एंड वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो टेंजिबल नहीं है। बट द 15 मिनट्स ऑफ फोकस्ड थिंग, Meditation. या यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग एंड यू आर क्लियरिंग आउट योर माइंड, आप अपने माइंड को शांत कर रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कृतिका ने, which I missed एकदम भी. But yes, we used to do it. I used to do it, and I have talked with another multiple rankers. सबका कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में, कोई मेडिटेट करता है, कोई एकदम शांत अकेले जाके बैठ जाता है छत पे, ऐसे ऐसे सबके थे. Hmm. Meditation and spirituality, like या these two should continue. Yeah. या एंड दीज Uh, हेल्प. इनके टेंजिबल रिजल्ट्स हमको दिखते नहीं है बस, बट दीज हेल्प hmm. इमेंसली. Correct, correct. Okay, I guess so. या If इफ anyone देर has आर एनी, another doubts, then yeah, sorry, you were telling something. या इफ एनीवन हैव एनी अदर डाउट्स देन Yeah. वी कैन सी. Otherwise, You guys can raise your hand and unmute yourself and speak if you want. I guess there is no doubt as of now. Uh, okay. Yeah. Okay, we can yeah. end this session. Like, if you both have to speak something else, then you can speak, or else we'll end it with the session. I would just like to express my gratitude to the branch that we got the opportunity to present ourselves to these two aspiring CA students. So I think it is a really grateful thing, and I really express my gratitude. Yeah, It yeah. was our Thanks, pleasure to Vikasa. host you guys. Yeah. So thank you everyone, Harjas and Dhairya and the entire Vikasa Kalyan Yeah, Dombivali committee for giving us this opportunity. So it was really a great experience, I would say, yeah, true. for us too. Yeah, it was a great learning. Ayush, Ayush Bajaj is our Secretary of Kalyan Dombivli Vikas. I would request you to present vote of thanks. Hello, good evening, everyone. Hi, Anuj and Kritika. Hi, Ayush. So, on behalf of the whole Vikasa committee team, I would like to thank you both to join us on this today's session. It's actually, not a for some people it would not be a big deal, but for me it is a big deal that two AIRs are sitting in front of me and guiding for the study strategies and all. So the your tips and the guidance that you gave us was very helpful. Apart from academic points, you also gave us the points regarding the meditation and how to manage stress and motivation. Personally, that my doubt that you catered is regarding the motivation and discipline that actually happened to me during my CA studies. So it was a great getting clarity from you. A special thank you to our participants and all the students that have joined for this today's session. Thank you for making this session as an interactive session, and I hope all of the doubts are cleared now. If anyone has any doubts, we can surely connect. We can surely also connect uh, them to the AIRs that the speakers of this today's session, and we can Yeah, also cater these doubts. Yeah. Yeah, So surely. yeah, we sure. are looking forward to applying these tips that we got from you guys in our exams, in my final exams also. Yeah. So thank you everyone. Thank you and congratulations to you both, and all the best. And all the best to the students for their upcoming exams. So apart from this, I have asked our Vice Chairperson Harjas Kaur to share this Google form that has been shared in the chat. I would like to request every student to fill this Google form as a feedback form, and get the insights from you guys as how this session was for you guys, and what improvements and additional benefits that we can provide. So yeah, thank you everyone.
Just a minute, I'll paste the Google form link. I would request everyone to please fill this form, and it's just important for us also as a committee. Like, what else do you want from us? What other sessions you expect from us in coming future? As we have been formed like 2 weeks back only, and we don't know how to cater you guys with different topics. If you have any specific topics that we can get speakers, we would be loving to host you guys. So please, I would request everyone for your feedback. You can fill up the form. It will just hardly take 2 minutes of yours, and it would be really helpful for us. Thank you so much, Anuj and Kritika, for being such a great uh, host for our audience, and thank you so much, audience, for being so interactive with them. I hope your all questions were answered. And seeing also, Anuj and Kritika, I would request you both to stay connected with us in our future initiatives For to sure, for sure. Sure, Rajesh. I hope you enjoyed with us. Yeah, Yeah, it was a totally. wonderful It was a experience. Yeah, very it was fun a experience. yeah. Thank you so Also, much. I would like to add that all the participants and the students that have joined these sessions will be getting an e-certificate for the participation. We'll be providing them e-certificates via email or WhatsApp, and there is a memento and a letter of gratitude that we'll be giving to the speakers of today's session. Thanks, Okay. Ayush. Thank It you. was Thank not required, but No, Of it course is required, actually, of course yeah, of required. course. You deserve it, obviously. Okay, so and let's end this session for today, and let's stay connected for the future endeavors. Thank you. yeah, thanks Thank you all. so Yeah, much, thank you. everyone. Congratulations for your Yeah. committee. Thank you. Thank you Yes. so much. Yeah. This is underscore VCP signing off. Thank you so much. Thank you. It was a fun experience.